Yeah, let us start now. It's 7 o'clock sharp. Yeah. Sir, I took a position. I put a this one. I sold a put for Mark 21 at 435. Which script you are talking? BPCL? BPCL 435. I took a position. 435. You sold the put now. Put for Mark 21, and today's price is 449 or something. So उससे मैं more than 10% reduce कर दिया. ठीक है. So but the only thing is kite में क्या दिखा रहा है? P&L में minus 3000 दिखा रहा है. What is the फंडा there? नहीं वो P&L जो आपको काइट में दिखा रहा है, that is the issue कि you are not supposed to do everyday tracking now. Now you taken a position, okay, and you have calculated your net buying price. So you have sold 435 put. Now what is the premium you sold? 14 rupees. So your net price is 435 minus 14, that is 421 rupees. Okay. So by the expiry of the contract, that is 26th of March, your costing will be 424. Come what may. Now what you have to do, you have to monitor. You may monitor on every day, and if your kite is showing a profit, if you want to exit, you can exit. Okay. If you are not exiting for the full month, then your price will be 424. Now suppose what will happen is, suppose after say 1 week, if the BPCL price goes to say 460, then your what you have sold the put, that will come in profit. At the time, if you want to square your position, you can square your position. I would request all participants to keep their mobile off. Yeah. Are you clear on this? Yes, sir. रिद्धि बोल रही हूँ. You can make me co-host so that I can keep muting people. No, you are okay, let me see. I have a question, sir. Yeah. Sir, for RIL Reliance, 1900 put. I made an order with a premium of 35 rupees on 23rd, but the order is not getting executed. नहीं कैसा बोल रहे हैं क्या वो? Reliance company. Reliance या? March 1900 put. हाँ. प्रीमियम मैंने 35 रुपीस का ऑर्डर में मेंशन किया था. 35 रुपीस का. 35 का. या 35 हाँ. But the market में प्रीमियम is less than that, so order is not getting executed. हाँ तो वो आपका 35 रुपीस का रेट नहीं आया है ना. वो 35 रुपीस का जब रेट आपका एक्सचेंज में आएगा तो ट्रेडिंग हो रहा होगा, then only your order will be executed. हो सकता है आपका जो ऑर्डर होगा वो 32, 33 चल रहा होगा या 30, 31 चल रहा होगा. So then 35 पे execute नहीं होगा. It is very similar to your buying a share or selling a share. आपने अपना लिमिट ऑर्डर डाला है, आपने मार्केट ऑर्डर नहीं डाला है. If you put the market order, then only your order will go whatever the prevailing rate. Otherwise, जब मार्केट उस रेट पे आएगा तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ना. So that you have to see कि आपका रेट क्या चल रहा है. Today is closing 21 sir plus 31 ना, वही है ना, आपने 35 का रेट डाला है. हाँ, काफी डिफरेंस था. हाँ तो फिर नहीं जाएगा ना. अगर आपने 31 का रेट डाला होता तो आपका रेट जाता था. 31, 32 का रेट डालेगा तो आपका जाएगा वो. So it's okay. You can try on Monday again. Monday अगर मार्केट गिरता है तो आपका 35 वाला एग्जिट हो जाना चाहिए. I can't hear. What is the next question? Yes, 7 to the capitalist. Bangladesh, Telangana, No, I'm not able to understand your question. I'm not able to understand your query. No, I can't understand your query. Or you can write in the chat otherwise.
Kothari, Madhu? can I ask my question? Yeah, I'm Chandrasekhar Thorat. yeah, tell me. See, on 22nd February, I purchased one lot of ITC One at lot of RTC. At what rate? What rate? 207. Okay. And I simultaneously I sold my call. ITC 207, na? Yeah. So I the sold call my call of 240 CE for rupees 2. for rupees 2. Yeah, I had mentioned this in our financial freedom F&O, and you had commented saying that you are very conservative. I Yeah. agree with that. But my problem is, sir, suppose if I had sold my call of 220 CE, okay, perhaps that would have been the correct thing, I feel, as you have suggested. Yeah. What happens is, sir, the call price starts going up as the share price goes up. Yeah, right. And then I'm in a dilemma as to what is to be done. See here, what I would like to suggest. Yeah. ITC, you have taken a position at 207. I think everybody is able to understand what is the query. His query is he has taken a position of ITC at 207. Now he want to decide what is his strike price. There has to be some balance between the risk and reward. Correct. Okay. So now the prices are available of 230, 240, 250. But the issue here is as you go higher the prices, your premium will reduce. So theoretically, what you should do, you should decide how much monthly rental you want from this particular position. That is the number one criteria. Suppose you want 1% as the return, assuming, or you want a 2% return of your investment. So 207, say suppose he has taken a target of 2%. So 2% of 207 will be somewhere around 4 rupees, correct? Now he should select a strike price wherever he is getting 4 rupees as a premium. Suppose that premium of 4 rupees coming at 220, then you should sell the call of 220. That means suppose the premium of 220 is 4 rupees. So in case the share remain less than 220, he will get his 4 rupees. That means his target of 2% monthly return is achieved. Right. Now, if the price is goes above 220, that means he has to give the delivery. In that case, he will get 4 rupees plus 13 rupees. Because 220 minus 207, that is 13 rupees plus 4 rupees the premium, so 17 rupees getting. So 17 rupees is almost something like 7% return is getting in a month. Yeah. Okay. So what I said, why you are taking 240 is the too conservative. In 99% the 240 price will not come. So that means you will get your 2 rupees as a premium. Definitely you will get. But 2 rupees is how much? 1%. So if your target was to get 1%, then 240 is okay. But if your target is to get 2%, then you have to go slightly aggressive. In that case, you have to sell 220 because the 4 rupees premium on 207 is available at the rate of 220 or maybe 225 or 230, whatever it may be. So you decide what is your target, how much you want to achieve. What I believe the shares which are very, very fundamentally strong, something like HDFC, their 1% return is okay. But if you are going for a volatile stream, something like ITC or something like BPCL or again something like IOC, these are a volatile stream. So there you should target at least 2% as the rental. So 2% return if you are getting every month, that means you are getting a return more than what the Warren Buffett was getting. Warren Buffett, the last 40 year or last 50 year of CAGR return is 1.75. So if you are getting 2% return every month, you should be very happy. So my suggestion will be target 2%. 2% is enough. If you go for more than 2%, then you have to go on the very near, maybe at 210. You may get 3% also, but then in that case, you have to give the delivery. So that is also good strategy. So what I did, sir, today, since the price came down to 205, in fact 204 at a point, the call price also got reduced from rupees 2 to 1.25. So if you want, you can spare the position. Now here, so what I did, I purchased back at 1.25. That means you booked the profit. Yes, I booked the profit and then again sold the call of 230 at 202 rupees 10 paise. That's a good strategy. Here you roll down your thing. You roll down your position. Roll down, that means you have booked your profit. You booked your profit for 75 paisa. Right. So 75 paisa is almost something like you have got 6%. You have got around 0.5% return on your investment. Okay? Right. And you have rolled down your position to 230, and again you got 2 rupees 10 paisa.
Yes. So again, you will get around 1% return if you will retain up to the full month. And in Correct. case you get a return somewhere in between, but if your position is generating a profit, again you can book the profit. So that Okay. strategy you can do it. There's no problem. But the issue with the 2 rupees or 3 rupees is too less. That is what I'll say. Yeah. 2 rupees, 3 rupees, at least I'm not really comfortable with that one. I want something like 15 rupees, 20 rupees premium, so that at least I get 5 rupees or 7 rupees in one position. So I get 15,000-20,000 rupees. That is what I target. And ITC is not a volatile stream actually. Yeah. So it moves in a day 3 rupees, 5 rupees maximum. Correct. You must have seen the ITC will not move than 5 or 10 rupees. Maybe Yeah. once in a 3 month, the script may move 3% or 4%. Otherwise, average movement is hardly 1%. Right. So And- it hardly gives anything. That is the issue. So that you And- have to decide ki which script you want to go and what you have to go. And Okay. Kothari साहब इसी The context question में was, बताइए. sorry, somebody wants to. Hello. Yeah. Yeah, Kothari साहब, अगर if the lot's price is lesser than our average buying price, so basically call is to be sold only above our buying price. No? तो आपके ऊपर है. It depends on you. That has no relation with कि आप क्या नहीं, price अगर select कर रहे हैं. अगर आपने 207 पे आईटीसी खरीदा हुआ, आपकी एवरेज कॉस्टिंग है, और हाँ. आपने 190 की कॉल आपने कॉल ऐसी भेज दी 3 रुपये प्रीमियम लेके कि और आपको डिलीवरी देनी पड़ गई, तो वो नुकसान हो जाएगा ना. हाँ, वो अगर टोटल प्राइस प्रीमियम प्लस अगर आपका सेलिंग प्राइस से करना है तो ऑब्वियसली नुकसान होगा. तो दैट मींस अगर शेयर उल्टी चाल चल रहा है तो फिर तो उस पे बैठना पड़ेगा, उस पे कॉल नहीं बेचनी. वो तो बैठना, क्योंकि आपका जो मार्जिन है वो सिर्फ 2 रुपए का इनको जो ब्रेक इवन मिला हुआ है. What he has done, he has sold 240 call at 2 rupees, correct? जी. So he has a break even of 2 rupees only. That means कि he is safe up to 205. 205 से जैसे शेयर नीचे जाएगा उनका लॉस स्टार्ट हो जाएगा. But again, it is significantly better than if you have bought ITC at 207 and he has not done anything. At least उससे तो ये वापस बेटर है ना. 2 रुपए का तो इनको वो ब्रेक इवन मिल गया ना. जी. हाँ, तो लेकिन आप अगर 205 से नीचे जाएगा तो लॉस चालू हो जाएगा. That is right. आप अगर आईटीसी 200 पे घूमना शुरू हो गया तो ये अभी बेच नहीं सकते हो, लॉट को रख के बैठेंगे. नहीं, उस वाले केस में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ही विल सेल 210 का बेचेंगे ना, तो 210 में तो 1 रुपया तो मिलेगा. अच्छा, ठीक है. अगर बहुत ही नीचे चला गया तब है, अदरवाइज ऊपर की कॉल बेचते रहेंगे. हाँ, ऊपर का कॉल जो उनका नेट बाइंग प्राइस है 207 का, 2010 वाला बेचो, 2020 वाला बेचो. और ठीक है ना? उन्हें जो भी नोट, ये बताइए, आप वारन बुफे की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने आज 11 बजे पुट बेची हो काफी और बाद में मार्केट गिर गई तो क्या करना है? 11 बजे अगर पुट बेची है तो और जैसे आज मार्केट गिरी है बाद में. नहीं, मैं वही बता रहा हूँ. इशू ये है कि आपने जो पुट बेचा था वो नेकेड बेचा था या कवर्ड बेचा था. अगर आपने नेकेड बेचा है देन भगवान ही नहीं बचा सकता. नहीं, नो, इट इज कवर्ड विद कैश. कैश है तो क्या प्रॉब्लम है? आपको अपना प्राइस पता है. लेकिन मैंने मेरा पुट बेचा था अभी, जैसे इनका आईटीसी का एग्जांपल बताता हूँ. इन्होंने सपोज आज 207 पे ये 240 का नहीं, इन्होंने मान लो 200 का पुट बेचा होता, मान लीजिए, ठीक है, 11 बजे जी. और 200 का पुट उन्होंने बेचा होता मान लीजिए 3 रुपए के अंदर. तो इनकी नेट प्राइस 197 है. ये इन्होंने डिसीजन तब लिया था जब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं 200 का बेच रहा हूँ और मुझे 3 रुपए मिल रहा है, मेरा 197 है. अभी वो प्राइस कुछ भी हो जाए, इनको 197 में लेना पड़ेगा. नाउ यू कैन नॉट चेंज योर स्टैंड. कोई मार्केट अब 2000 पॉइंट गिर गया, आप 50,000 आपका जो है 45,000 आ गया, उससे कोई मतलब नहीं. आपने जिस समय आपने पोजीशन लिया था उस समय आपने ये डिसीजन लिया था कि मेरे को या तो 3 रुपया रेंटल मिले या मैं इसको 197 पे खरीद लूंगा. तो यू हैव टू स्टिक टू योर पोजीशन. और वैसे आज जो हुआ है ये एक्चुअली बहुत अच्छा है. मतलब दिस इज नॉट अ बैड पोजीशन. आज तो लोगों ने इतना पैसा कमाया होगा, जो भी श्रूड प्लेयर है, जो भी जिन लोगों ने ये स्ट्रेटेजीज किया है उन लोगों ने जबरदस्त पैसा कमाया है. जिन्होंने भी स्ट्रेटेजी लगा के किया है ना, जिनके पास कैश था, जो 1:30-2 बजे के बाद काम किया, जिन्होंने 1:30 बजे के बाद. नहीं, मैं तो आज मॉर्निंग से काम कर रहा था. मैं तो मॉर्निंग से कर रहा था. देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एनफ मनी यू कैन मेक. बट इसमें क्या है कि आपको अभी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आई एम टॉकिंग इन जनरल, कि हम लोग जो ना बहुत सारी चीजों में पैसा लगा देते हैं. बहुत सारी चीजों का मतलब, ये पैसा का मतलब क्या है, आप म्यूचुअल फंड में भी लगा दे रहे हैं, आप फिक्स डिपॉजिट में भी लगा दे रहे हैं, आप 50 तरह के शेयर्स में भी लगा दे रहे हैं, सब करते हैं. अगर मैंने आपको पहले भी मेरे वेबिनार में बोला था, मैं आज अगर फिर मैं दिखाता हूं कि मेरा जो पोजीशन जो है, मेरा इक्विटी, जो मेरा मार्जिन मनी है, दैट इन 8 डिजिट में मेरा रहता है, और मेरे पास स्किप रहता है ओनली 3. मैं आज जो काम कर रहा हूँ सिर्फ काम कर रहा हूँ बीपीसीएल पे,
मैं काम कर रहा हूँ यूपीएल में, और मैं काम कर रहा हूँ आईडीएफसी बैंक में। ओनली 3 स्क्रिप्ट में काम करता हूँ मैं। तो मेरा जो कैपेसिटी है ना एवरेजिंग करने का, वो जबरदस्त है। मतलब कि अगर वो आज जैसे बताता हूँ, आज बीपीसीएल में आई मस्ट हैव अर्न एटलीस्ट 1 लाख रुपीज। क्योंकि मेरे को आई एम इन अ पोजीशन टू टेक द पोजीशन इन बोथ द साइड। मैं ऊपर का भी कॉल बेच दे रहा हूँ, मैं ऊपर का पुट भी बेच दे रहा हूँ मैं, और मैं एवरेजिंग कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी ताकत है मेरे 5 या 7 लॉट लेने की, ठीक है ना। तो उसमें आप पैसा बनाएंगे। तो मेरा सिंसियर सजेशन सब लोगों से यही है कि अगर आपको कवर्ड वाला काम करना है, और अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, हर महीने कमाना है, आप अपना सारा चीज बेच दो। आप 1 या 2 स्क्रिप्ट में काम करो, जो भी आपको पसंद है, चाहे आप आईटीसी में करो, चाहे रिलायंस में करो, चाहे हिंदुस्तान लीवर में हो, बीपीसीएल में हो। इतना पैसा बनाओगे आप लोग कि मतलब आप सोच नहीं सकते आप, और एवरी डे बनाओगे आप। बट इसमें रिक्वायरमेंट यह है कि आपका कैपिटल अच्छा होना चाहिए, और आपका 1 या 2 स्क्रिप्ट होना चाहिए। आप 1 स्क्रिप्ट में काम करो, मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ बीपीसीएल में काम करो, उसमें इतना पैसा बना लोगे कि आप देखोगे कि क्या रहा है, जिस तरह से पैसा आता है। क्योंकि मार्केट में फियर होता है, मार्केट में पैनिक होता है, उसका फायदा अपने को उठाना है, और अपना पोजीशन कवर्ड है, ठीक है ना। हम तैयार हैं, हमारे पास कैश अवेलेबल है। तो आज जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने 500 का मैंने कॉल बेचा, ये इसका आपका बीपीसीएल का 16 रुपए में मैंने 500 रुपए का कॉल बेचा, और 500 रुपए का मैंने पुट भी बेचा। पुट मैंने बेचा 65 रुपए में, 65 रुपए में जो मैंने पुट बेचा, वो 65 रुपए वाला पुट जो है, जैसे ही मार्केट ऊपर थोड़ा सा गया, वो 50 रुपए में मैंने एक्सपायर कर दिया। यानी कि मेरे को एक ट्रेड में मेरे को 15 रुपए मिला। 15 इंटू 1800 का लॉट है, 1800 इंटू 1500 मेरा एक ट्रांजेक्शन में मिला। अभी जैसे ही मार्केट गिरा, तो वो जो मेरा 16 रुपए का जो कॉल था, वो मेरा 9 रुपए में आ गया। मैंने 9 रुपए में इसको एक्सपायर कर दिया। ये एक दिन का ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, ये तो मैं बता रहा हूँ जो पुट और कॉल में किया है। उसके अलावा जो मेरा फ्यूचर में पोजीशन चल रहा है, फ्यूचर में मैं जो है हर 10 रुपए में या तो उसको बेच रहा हूँ या खरीद रहा हूँ। मेरे को बीपीसीएल से कोई प्यार नहीं है, मेरे को कोई बीपीसीएल से नफरत है ना वो प्यार है। बीपीसीएल शुड जनरेट द मनी फ्रॉम मी, दैट इज माय टारगेट। बट इसके लिए आपको डिसिप्लिन ये चाहिए कि आपको नंबर ऑफ स्क्रिप्ट कम करना है। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना किसी भी हालत में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ये मार्केट आपके लिए नहीं है। फिर आप जो है म्यूचुअल फंड तो एक जो नॉर्मल जो एक इंडियन होता है, जिसको कुछ पता नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, स्ट्रेटेजीज के बारे में, आप लेते रहिए, आपको 8-9% रिटर्न आता रहेगा। इफ यू आर हैप्पी विद 8 to 9%, इट्स ओके। अदरवाइज इन अ मंथ यू कैन जनरेट अ रिटर्न ऑफ 4 to 5% इजीली। बट देन आपका कैपिटल होना चाहिए, और डिसिप्लिन होना चाहिए, और नंबर ऑफ स्क्रिप्ट आपका 1 या 2 होना चाहिए। मतलब 25 लाख अगर आपके पास है, आप 1 स्क्रिप्ट में काम कीजिए, आप एवरी डे, मैं बता रहा हूँ, आप आराम से 20-25 हजार रुपए रोज का कमा लेंगे। बट स्क्रिप्ट एक ही होनी चाहिए। जहां आपने 4-5 स्क्रिप्ट किया, वहां प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका फिर तो दोनों तरफ से आप एवरेज कर पाओगे। आप कॉल भी बेचोगे, पुट भी बेचोगे, आपका पोजीशन है, आपको मॉनिटर एक का ही करना है, तो आपको 24 घंटे एबीसीडी पता चल जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू शुड डू। आई एम डूइंग दैट। तो एक ही लॉट और 2-3 लॉट लेना चाहिए बीपीसीएल का? एक ही लॉट से काम करो, कभी भी लालच में नहीं आना है, क्योंकि फिर आप एवरेज नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या है, आज मेरा इतना बड़ा कैपिटल होने के बाद भी मैं एक लॉट पे काम करता हूँ, बट मेरा एवरेजिंग का ताकत बहुत बढ़ जाता है। अभी जैसे बता रहा हूँ ना, आज मैंने बीपीसीएल का जो है, आज का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। आज मैंने बीपीसीएल 440 में खरीदा, 450 में खरीदा, 460 में बेचा, 465 में बेचा, फिर मैंने वो नीचे आया, फिर मैंने 445 में लिया। ये क्यों कर पाया? मैं एक लॉट पे काम कर रहा था। आई एम हैप्पी विद 1 लॉट। एक लॉट मेरे को अगर एक ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपए देता, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को एट ए टाइम मतलब 50,000 रुपए नहीं चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करके टारगेट करो कि साहब मेरे को रोज का जो है एक ट्रांजेक्शन में मेरे को 8,000 10,000 रुपए मिल जाए, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड यू विल मेक गुड मनी। मैं आईडीएफसी में करता हूँ। मैं आईडीएफसी का जो आपका आईडीएफसी में मैं अपना टारगेट लेके चलता हूँ 50 पैसे का। मैं लॉट खरीदता हूँ 50 पैसे में, मैं उसको बेच देता हूँ। 50 पैसे बेचता हूँ, 9,500 रुपए आता है। 19,000 का लॉट है उसका। तो आप तो फ्यूचर का बात कर रहे हैं। मैं मतलब क्या है कि सिंस मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिंस आई एम डूइंग ओनली इन 3 स्क्रिप्ट, एंड 3 में से भी जो मेजर मैं कर रहा हूँ सिर्फ आईडीएफसी और बीपीसीएल में कर रहा हूँ। मैं यूपीएल तो मेरा भी साइड वाला मैंने लिया, बाकी 2 स्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ। तो मैं शेयर नहीं खरीद रहा हूँ, शेयर के अलावा मैं शेयर के बजाय मैं फ्यूचर में काम करता हूँ। बट ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। आप अगर शेयर लेके करोगे तब भी मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट इवन इफ यू डू विद द फ्यूचर, दैट मींस यू आर एबल टू मैनेज योर पोजीशन, यू आर एबल टू ट्रांजेक्ट मच मोर। तो हर ट्रांजेक्शन में आपको 8 से 10,000 रुपए आना चाहिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू टारगेट। बट अगेन द प्रॉब्लम वही है सबसे बड़ा हमारा, कि हम लोगों ने इतने सारे स्क्रिप्ट से शादी की हुई है।
हमारी किसी की हाँ, 40 बीबियां that's हैं, किसी की 50 बीबियां हैं, किसी के कितने वो हैं, किसी के कितने म्यूचुअल फंड है। यू कैन नॉट डू इट। ऐसा बनाना है, एक स्क्रिप्ट पे करो, इतना पैसा बनाओगे कि आप भूल जाओगे सारा अदर का। मैं बता रहा हूँ ना सर कि जी, मेरा जो अभी एक अर्निंग है, जो मैं HPCL में जब मैं रिटायर हुआ, उससे मेरी मतलब 2 गुना से 3 गुना मेरी ज्यादा अभी मंथली इनकम चल रही है। तो कठारी साहब, जैसा आप हाँ, बता रहे हैं, अगर हमने किसी शेयर का पुट बेचा हुआ है हाँ। एंड शेयर उल्टी चाल चल गया, तो दैट मीन्स हम उसका फ्यूचर्स का, अगर हमारे पास शेयर नहीं है तो वी कैन स्टार्ट प्लेइंग विद द फ्यूचर्स। भाई उसमें अभी जो आपके बिगिनर्स जो हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर मान लो फ्यूचर और पुट और कॉल पे अगर काम करेंगे तो देखो आपको दो पोजीशन मैनेज करनी है। नहीं, बट अगर आप मैनेज कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। क्योंकि फायदा क्या है कि फ्यूचर में मेरा जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आता है वो 1/10 है। मतलब कि मेरा अगर मैं 10 लाख का ट्रांजेक्शन अगर मैं इक्विटी में करता हूँ तो मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट आता है करीबन 2,500 रुपए। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब ब्रोकरेज हो गया, उसमें उसके अंदर आपका STT हो गया, उसमें सेबी चार्जेस और ट्रांजेक्शन चार्जेस सबको मिला के अगर मैं देता हूँ तो 10 लाख पे मेरे को 2,500 रुपए का इक्विटी में मेरा खर्चा आता है। वही अगर मैं फ्यूचर में करता हूँ तो मेरे को 250 रुपए आता है। तो मेरा मतलब जो है मतलब 2,200 रुपए मेरा बच जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा एडवांटेज इसमें मेरे को क्या होता है फ्यूचर के अंदर कि वो एक टेम्पटेशन नहीं आता है कि मैं इसको 200 शेयर ले लूं, 250 शेयर ले लूं, मैं देखता ही नहीं उधर। तो ये डिपेंड करता है, इफ यू आर कंफर्टेबल हैंडलिंग फ्यूचर एंड द कवर एंड योर कॉल एंड पुट, वेरी गुड। बट इफ यू कैन नॉट हैंडल इट देन यू डू विद इक्विटी, देयर इज नो इशू। क्योंकि इक्विटी में भी आपको 40-40, 50,000 का एक ट्रांजेक्शन में पैसा मिल रहा है, तो ये 2,000 का कोई वैल्यू नहीं है। सो यू कैन डू दैट आल्सो। या Kothari sir, या Kothari sir, those who do not want to really double every day, this monthly, like, can others mute please? Yeah. See, what I was asking was this, especially this call and put together strategy. हाँ, If you have, if you have only 15 lakhs, you can do only 1 lakh. So Yeah, suppose you have, 15 लाख अगर आपके पास है, यू कैन इजीली डू द शॉर्ट स्ट्रगल, दैट इज द एक पुट, मतलब एक लॉट का आपने माल खरीद लिया और एक आपने पुट बेच दिया, एक आपने कॉल बेच लिया, 15 लाख से काम चल जाएगा आराम से। so suppose by selling some other stocks, let's say we get 30 lakhs. Can we do 2-2? हाँ, Is you that can a do 2-2 good ना। strategy? मैंने आपको बताया ना, मैं BPCL में मैं एट ए टाइम 5 या 6 का पोजीशन ले लेता हूँ मैं। तो इसलिए ले पा रहा हूँ कि कैपिटल ज्यादा है और नंबर ऑफ स्क्रिप्ट मेरा कम है। IDFC में मेरा एट ए टाइम मैक्सिमम 5 या 6 तक मेरा जो पोजीशन चला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं उसको एवरेज कर लूंगा, मैं ऊपर में बेच लूंगा, कॉल बेच लूंगा, पुट, वो सारे कॉम्बिनेशन बढ़ जाते हैं फिर। तो मेरा क्या है कि अगर आपके पास 25 लाख 30 लाख रुपए है तो अभी आप एक स्क्रिप्ट में करो, आप एक स्क्रिप्ट मास्टर बन जाओ आप। वंस यू बिकम कॉन्फिडेंट कि यस मेरे को अभी मैंने मान लो 30 लाख रुपए लगाया और 30 लाख रुपए से मेरे को महीने का अगर जो है 2 लाख रुपए में जनरेट कर पा रहा हूँ या 1 लाख रुपए जनरेट कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि आपका रिटर्न जो है समथिंग अराउंड 3% का आ रहा है। then you move to the 2 scripts, then you have to increase your capital to 40 lakh or 50 lakh. It is a business, we have to treat this as a business. मैं बिजनेस कर रहा हूँ मैं, और बिजनेस जो है बिजनेसमैन की जैसे आप सोचिए, आप उस शेयर से प्यार मत कीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मेरे को उससे पैसा आना चाहिए हर महीना। वो आप एक साइकोलॉजी लेके चलो, आप पैसा बनाओ। ठीक। या So ठीक, so मेरा अभी सजेशन है कि एक स्क्रिप्ट में कीजिए, आप सब लोग एक स्क्रिप्ट में कीजिए, 2 में मत कीजिएगा। 2 में करने के लिए कम से कम आपको अच्छा पैसा लगेगा। एक स्क्रिप्ट में कीजिए, बट आपका पोजीशन इतना हो कि आप 2 या 3 तक का एवरेज करो आप। जैसे मान लो इन्होंने ITC में किया है, अब ITC में इन्होंने 207 में एक लिया था। नाउ ही शुड टारगेट कि अगर मेरे को और लेना पड़ा तो 190 अगर आ गया मैं एक लॉट और ले लूंगा, और अगर 170 आ गया तो एक लॉट और ले लूंगा। तो ये 3 लॉट की ये पोजीशन इनकी हो गई है। अब वो ITC 170 जाने का मतलब है कि इंडेक्स कम से कम 10,000 पॉइंट नीचे गिरना चाहिए, तब वो 170-75 पे आएगा, तो वरना नहीं आने वाला है। हो सकता है मंडे ट्यूसडे को ये घूम जाएगा ये, ठीक है ना। ही विल मेक अ गुड मनी। सो इफ यू आर ऑपरेटिंग विद ओनली 1 लॉट देन इट विल बी डिफिकल्ट टू मेक गुड मनी। अच्छा पैसा बनाना है तो कम से कम 2 या 3 लॉट को काम करना पड़ेगा। ओके सो दैट्स एग्जैक्ट। सर हेलो सर। हाँ बोलिए। जैसे अभी मार्केट पोजीशन अभी पता चलता है मॉर्निंग में कि 1% बढ़ने वाला है, बढ़ जाता है 3%, या घटने वाला 1% घट जाता है 3%।
हाँ, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हाँ, इन केस अगर कॉल भी बाय किया और पुट भी बाय किया हाँ। तो कम पैसे में हम खेल सकते हैं ना फिर? नहीं नहीं, देखिए जैसे मैं शुरू से जो बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शंस बाई कर रहे हैं देन यू आर अ दोनों गैम्बलर। दोनों दोनों बाय कर रहे हैं, हाँ, पुट दोनों भी बाय बाई कर कर रहे रहे हैं। हैं, पुट भी बाई कर रहे हैं और वो भी बाई कर रहे हैं, देन यू आर अ गैम्बलर। गैम्बलर जो होता है उसको ये उम्मीद रहती है कि मेरे को कभी ना कभी तो मेरे को जैकपॉट लगेगा। जैकपॉट का मतलब ये है कि आपने कॉल भी खरीदा, पुट भी खरीदा और आप ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट इतना गिर जाएगा या मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा। क्यों कि आपका जो दोनों का जो कॉस्ट है, कॉल का जैसे मान लो कॉस्ट 10 रुपया है और पुट का कॉस्ट अगर आपको 10 रुपया है, तो टोटल आपका कॉस्ट कितना हुआ? 20 रुपया हुआ। दैट मीन्स 20 रुपए। योर शेयर हैज टू मूव अबाउट 20 रुपीज और इट हैज टू फॉल बाय लेस देन 20 रुपीज। वो रेयरली होता है, इसलिए तो बता रहा हूँ कि 80% टाइम नहीं, आपके जो ये बट कॉल और बट पुट आपके जीरो हो बट सर जाएंगे। ऐसा भी होता है ना, जैसे कि सपोज करो अभी आईटीसी का केस लेते हैं। हाँ, आईटीसी केस में अगर मेरा जो टारगेट है 2% या 5% का है, हाँ, अगर हाँ, मैंने मेरा अपर सर्किट और लोअर सर्किट 5% पे सेट करके रख दिया, 5 नहीं, फॉर डेली बेसिस के लिए 1% पे सेट करके रख दिया, हाँ। और 1% से अबव मूव होता है ज्यादा या 1% से नीचे मूव ज्यादा होता है, तो मैं तो गेन करूंगा ही ना सर। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर। आप थोड़ा कैलकुलेशन करके देखिए, क्योंकि अगर आपने 1% का टारगेट लिया है तो दोनों का एक एक हो गया ना। 2% शेयर आपका मूव पर करना चाहिए। अब 2% आईटी से कितनी बार मूव होता है? आईटी से ओके। 2% रेयरली मूव होता है। और मैं तो बिल्कुल भी मतलब जो है ऑप्शंस बाई नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज अ सेलर। You have to think like an institution. All institutions, all your FIIs, all DIIs, all your even Warren Buffett, he only sells the options. They never buy it. We all the retailer, general public, जो क्या सोचते हैं कि मैं 10,000 में काम कर लूं, 5,000 में काम कर लूं, तो वो जो लॉटरी टिकट खरीदते हैं, इट इज when you are buying any option, it is like a lottery ticket. चल गया तो 10 गुना मिल जाएगा, नहीं चलेगा तो वो पैसा आपको जीरो हो जाने वाला है। आप ये हिसाब से सोचिए कि अगर आपने वो कोई ऑप्शन खरीदा है तो किसी ने बेचा है, बराबर है। आपने एक ऑप्शन अगर मान लो खरीदा है तो कोई ना कोई तो यस। सेलर होगा ना, कोई ना कोई तो सेलर है। और सेलर कौन है? सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। उनको यस। पूरा पता है कि ये आईटीसी कितने रेंज में मूव करने देंगे। वो करने ही नहीं देंगे उसको। कोई आपका ब्लैक स्वान टाइप इवेंट आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज इनवेरिएबली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो पोजीशन को इस तरह से मैनेज करते हैं कि वो जो आपकी जो जहाँ मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई जहाँ आता है उससे ऊपर वो शेयर को जाने ही नहीं देंगे। ऐसा वो मार्केट को कर देंगे वो। सर So मैंने why you नोटिस want to किया do है, all those things? हाँ? मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जो प्रीमियम जो होता है, वो जो प्राइस स्ट्राइक प्राइस होता है, इसका बीच का जो गैप होता है हाँ। वो नियर बाय 10 to 12% रेंज में होता है। नहीं, ऐसा ऐसा कोई जनरल या तो प्रिंसिपल नहीं इनकेस है। जनरल प्रिंसिपल ऐसा इनकेस नहीं जैसे है। अभी अगर हम बात कर रहे थे कि अगर मैं आईटीसी का 2 रुपए प्रीमियम पेड करूंगा तो हाँ, उसका रेंज मेरे को 10 से 12% का मिलेगा, या नहीं नहीं मंथली में 1% ही कमा पाऊंगा? नहीं, अभी आपको सेम एग्जांपल बताता हूँ मैं। आईटीसी का 207 का इन्होंने 240 वाला जो कॉल था वो 2 रुपए में खरीद बेचा इन्होंने। ठीक है, तो किसी बराबर ने इसको खरीदा है, यानी सर। कि वो 2 आज रुपए बेचा है ना पॉसिबल था उन्होंने। क्योंकि मार्केट ज्यादा मूव हुआ था आज नहीं नहीं मार्केट। नहीं नहीं, ये पोजीशन तो 2 दिन पहले का है उनका। अभी मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि 207 जब रेट चल रहा था तब उन्होंने जी 240 का कॉल उन्होंने 2 रुपए में बेचा। अभी बराबर। आईटीसी जब तक 242 रुपए नहीं जाएगा, उस जो बायर था उसको प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब बायर को बराबर प्रॉफिट करने के लिए आईटीसी हैज टू मूव अबाउट 240, अबाउट 242, तभी बायर को फायदा होगा। और सेलर को फायदा कब होगा? 240 के नीचे रह जाएगा। सो अभी आप मुझे बताइए कि आईटीसी बाय द एक्सपायरी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 240 के ऊपर जाएगा या 240 के नीचे रहेगा? मेरे हिसाब वो से सर 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये 240 के नीचे रहने वाला है। दैट मीन्स कि उनको 2 रुपए का फायदा पक्का होने वाला है। और जिसने वो ऑप्शन खरीदा था उसको प्रोबेबिलिटी 5 या 10% की है, उसको फायदा होने वाला है। सर अगर इनकेस अगर ये ऊपर चला जाता है 242 के ऊपर, तो तब हमें फायदा हमारा होगा। कुछ मनी डिपॉजिट करना पड़ता है कुछ? नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं डिपॉजिट। अगर आपने बायर की, आपने अगर आपने इफ यू आर ऑप्शन बायर देन यू नो आर नो नॉट रिक्वायर्ड सेलर, टू डू इन एनी केस ऑफ डिपॉजिट। सेलर, इन केस ऑफ सेलर। इन केस ऑफ सेलर तो वो जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट आएगा वो मतलब वो मार्जिन का रिक्वायरमेंट जो आपका 30% ऑफ द वैल्यू रहता है वो देना पड़ता है। तो फिर मेरा बट फिर अगर डबल आपका डबल। नहीं नहीं, अगर आपने इन्होंने बेचा है, जैसे मान लीजिए 207 वाला इन्होंने खरीदा होता और 240 के ऊपर चलने लग गया, तो आई विल नॉट वेट फॉर 242। मैं तो 230 पे दोनों स्क्वायर करके बाहर निकल जाऊंगा कि Absolutely. भैया मेरे को जो है 25,000 रुपए मिल गया, 30,000 रुपए मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। आई विल नॉट Right. वेट अप टू 240। मैं तो Right. नो बोलूंगा नो 75% अपने को प्रॉफिट आ रहा है, निकल जाओ बाहर, निकल जाओ उसमें से। Right. क्योंकि Absolutely. आपका शेयर इतना बढ़ गया ना।
नहीं, आपका बट शेयर इन 200 केस वो उतना टाइम ही ना मिले, सपोज अगर मैंने नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं आपको ऑप्शंस जब आप करते हैं ना तो आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके सर। हाँ अरे आपको बड़े सैकड़ों मौके मिलेंगे जब आप उसको प्रॉफिट में लेके निकल सकते हो आप। मेरा टारगेट होता है 50% का। अगर मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर 50% का है, 50% अगर मुझे मिल जा रहा है, मैं पोजीशन स्क्वायर करके बाहर आ जाता हूँ। देन आई विल नॉट वेट फॉर द मंथ एंड, मैं फिर दूसरा किसी पोजीशन में घुस जाऊंगा। क्योंकि जो पैसा आपके हाथ में आ गया वो ज्यादा बढ़िया है रादर देन कि वो 1 महीने बाद क्या होने वाला है। 1 महीने बाद अगर ये इंसिडेंट अगर 1 महीने बाद हो जाता जो आज हुआ है, तो हो सकता है जो मेरा जो 23 जो इनको 33 रुपए मिल रहा था, जैसा 207 का आज 240 मान लो आज ही हो गया होता, मान लीजिए इनको आज इनको 33 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बराबर। और ये अगर मान लो ये जो आज जो 2000 पॉइंट मार्केट गिरा है और ये उस दिन एक्सपायरी के दिन अगर 2000 पॉइंट गिर जाता तो हो सकता है आईटीसी वापस 207 में आ जाता, तो इनको क्या मिलता है 2 रुपए मिलता है इनको। और जबकि अगर ये 240 वाले पोजीशन में निकलेंगे तो इनको कम से कम जो है 20-22 रुपए मिल जाएगा। 20-22 रुपया इंटू आपका 3000 यानी 66,000 रुपए इनको 3-4 दिन में मिल जाएगा। तो आई विल नॉट वेट फॉर द मंथ एंड, आई विल स्क्वायर माय पोजीशन इन बिटवीन एंड आई विल कम आउट। आई विल मॉनिटर माय पोजीशन एंड देन आई कम आउट। दैट इज व्हाट आई विल। ओके सर। आपका टारगेट ये है कि यू हैव टू मॉनिटर योर पीएनएल। पीएनएल में आप देखो उस पोजीशन में अगर आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है 15,000, 20,000, 25,000 रुपए मिल रहा है, आप लेके बाहर निकल जाओ। डोंट वेट, थोड़ा सा पैसा कोई दूसरा कमाता है कमाने दो, हमने थोड़ी पूरा समुद्र पीना है। जितना हमारी कैपेसिटी उतना ही लेंगे ना, तो उतना लेके निकल जाइए बाहर, पैसा निकालिए वहां से सिस्टम से। चलिए पुट बेचने के बाद ओके सर, ओके सर। सर ये पुट बेचने के बाद हम कितने सपोज आधे घंटे के बाद निकल जाए तो इंटरडे वाला कुछ इशू आता है क्या? क्या आता है? इंटरडे वाला कुछ इशू आएगा? नहीं इंटरेस्ट इंटरडे होता है। इंटरडे का वो 20 रुपए ब्रोकरेज जो लगता है बस वो लगेगा 150 रुपए। अच्छा सपोज जो आपका बाइंग में 20 रुपए, सेलिंग में जो ब्रोकरेज लगता है वो 40 रुपए ब्रोकरेज लगेगा। बाकी जो आपके जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं वो लगेंगे बस। और क्या, चाहे आप 7 डे स्क्वायर कीजिए, चाहे 10 दिन बाद स्क्वायर कीजिए, चाहे 1 महीने बाद कीजिए, तो लगना 20 रुपए ही आपको। Sir, actually, ever since I read your strategy on this WhatsApp in September, I have been following this very closely. I did a lot of investments in IOC, and this time now what I have done is I have shifted to IOC because I said let me change the script. Now I have a feeling. Others, please mute. Others, please mute. I'm making all as a mute, and then who want to speak, unmute and then speak. I'm making mute everybody. Now mute. Whoever want to speak, he is unmute and then speak. Yeah. बोलिए चंद्रशेखर जी। I was talking about IOC. Like initially, I was in IOC. I made a lot of money in IOC, as you were saying in BPCL. Yeah, but this time I decided that I was not very certain about IOC's script price. I thought that it has reached a maximum level, say around 100. So I thought I would shift it to ITC now. नहीं, ITC and IOC का तो दोनों का रिस्क प्रोफाइल बहुत ही अंतर है। ITC इज अ वेरी आई विल से कि मतलब बहुत ही मतलब लेस वोलेटाइल, उसका बीटा बहुत ही कम है। IOC का बीटा बहुत ज्यादा है। हाँ, तो IOC में अपने को क्या है कि अच्छा रिटर्न आता है। और अगर आप पिछले 6 महीने से अगर IOC में कर रहे हो, देन दैट मींस यू आर मास्टर्ड इन IOC नाउ। ठीक है, तो आपको यू हैव एक्सपर्टाइज इन IOC नाउ। IOC इज शेयर, नॉट IOC कंपनी। IOC शेयर में यू आर मास्टर नाउ। आई थिंक यू शुड कंटिन्यू इन दैट वन। Okay. Probably you could have shifted from IOC to BPCL, where BPCL is become more volatile और वहां पे पैसा जबरदस्त आ रहा है rather than IOC. But IOC क्या कि volatility थोड़ी कम है। जैसे HPC में volatility बहुत कम हो गया अभी सबसे कम तीनों कंपनी में देखेंगे तो HPC और IOC में volatility is the least and BPC में volatility is the highest. तो ऑप्शंस में पैसा ज्यादा जहां आता है वो होता है जहां पे आपका volatility ज्यादा है। तो ITC में तो आप और कंजर्वेटिव में चले गए तो वहां पे आपको 1-1.5% का रिटर्न आएगा। IOC में करीबन 2% का रिटर्न आएगा। BPC करेंगे तो 3-3.5% का आपको महीने का रिटर्न आएगा। Sure. But considering that situation, like suppose if ITC further goes down to 203, then I will continue with this same strategy which I am doing. Then my 230 call also would come down. I will again square it off and then go for 220 call बेचूंगा। अरे प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको प्रीमियम 2 रुपए का मिला हुआ है। 2 रुपए का 1 रुपया हो जाएगा, कितना कमाएंगे आप? 3,000 रुपया। Today I have already got 75 पैसे। हाँ, तो 75 पैसा यानी कि कितना पैसा आया? 75 पैसे। ITC का लॉट कितना है? 3,200। So 3,200 into 75 paisa, that means you earn something around 2,700.
Yes. अब इतना पैसा लगाने के बाद में एक लॉट कम से कम आपका 6 लाख रुपए के लॉट में अगर आपको सिर्फ 3,000 रुपए मिल रहा है, मैं तो देखता भी नहीं होगा। No, what I'm saying is I am not anticipating that ITC price would go down. This situation can come only if ITC price goes down. If it goes up, then fine. I am happy with it. हाँ, गो जब चलेगा तो आपको ITC का डिफरेंस और मिल जाएगा। Yes, yes. IT का डिफरेंस और मिल जाएगा। हाँ, नीचे जाएगा, बट नीचे में आपको ब्रेक इवन बहुत कम है। 2 रुपया का जो है ना, वो ब्रेक इवन में मेरे को कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। No, that I realize. No, that I realize. So that's why I did that. What मिनिमम 2% का रिटर्न, मिनिमम 2% का आपको रिटर्न मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, मिनिमम 2%। Okay, okay, okay. तो 2% के हिसाब से आप अपना स्क्रिप्ट सेलेक्ट कीजिए, आप अपना स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कीजिए। Got it. Thank you. Any other question? Sir, are you able to hear me? Yeah, I can hear. Sir, actually, I had a couple of questions. This position जो लेना है, it should be closer to the, अभी suppose HPCL का 250 के आसपास चल रहा है, तो हमारा सीरीज जो बाई करना है या सेल करना है, तो 250 मार्च 255 या 260 270 वो रेंज में लेना है या हायर और लोअर? नहीं, आप कॉल की बात कर रहे हैं, पुट की बात कर रहे हैं? कॉल की बात कर रहा हूँ। कॉल की बात कर रहे हैं, तो आप कॉल जो है बेचने वाले हैं, बराबर है? हाँ, बराबर है। अभी आप HPC में आपने पोजीशन कितने पे लिया? मैं पोजीशन लिया 255 में at 13 रुपीज। नहीं, पहले आप शेयर कितने में लिया उसकी बात कीजिए। शेयर नहीं लिया, बट डिपॉजिट। नहीं, अगर आपने शेयर नहीं लिया है और अगर आपने कॉल बेचा है, दैट मींस यू आर हैंडलिंग ए नेकेड पोजीशन। ओके, करेक्ट। नेकेड पोजीशन, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू इट एट ऑल, क्योंकि अगर मान लो BPCL का डिसइन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया इसी महीने के अंदर, तो आपका HPC का रेट 280 हो जाएगा, आपको जबरदस्त लॉस हो जाएगा इस साल के अंदर। You will lose heavily in this thing. I will not suggest at all. Right, sir. अगर आप नेकेड पोजीशन अगर आप हैंडल कर रहे हैं, आप, मैंने जैसे पहले बताया था, आप 2 महीना कमाएंगे, 4 महीने कमाएंगे, लेकिन 1 महीना ऐसा आ जाएगा कि आप मार्केट को 50 रुपए देके जाएंगे। उसमें आपके पास हेज करने के लिए आपका पोजीशन नहीं है, फिर वो कवर्ड कॉल थोड़ी ना हुआ। Then you are handling the naked position in the put side or call side, and these strategies are not for that. इसका कवर्ड कॉल क्या होता है? मतलब कवर्ड कॉल का मतलब ये है कि अभी आपने जो पोजीशन लिया है, वो पोजीशन में अगर आपके पास स्टॉक होता, मान लो 255 में आपने शेयर भी खरीदा होता, बराबर, या आपने 250 में शेयर खरीदा होता, मान लीजिए। अब 250 में शेयर खरीदने के बाद में आपने 260 का आपने कॉल बेचा है, मान लीजिए 13 रुपए में या 10 रुपए में जो भी बेचा आपने, तो या तो 260 के अगर नीचे रहेगा शेयर मंथ एंड तक, तो आपको 10 रुपया गारंटेड मिल जाएगा, यानी कि आपको 27,000 रुपए मिल गए, बराबर। 260 के नीचे रहता है तो, और 260 के ऊपर चला जाता है तो आपको 10 रुपया ये भी मिलेगा, 260 माइनस 250 वाला 10 रुपया वो मिलेगा, प्लस जो आपको 10 रुपया प्रीमियम वाला 20 रुपया, यानी कि 54,000 रुपए मिलेगा। तो यानी कि मतलब या तो आपको 54,000 रुपए मिलेगा या 27,000 रुपए मिलेगा। अभी आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी है जो आपको शेयर नीचे जाने पे भी पैसा देता है, ऊपर जाने पे भी पैसा देता है? ये स्ट्रेटेजी जो कवर्ड स्ट्रेटेजी है, इसमें तो आपको दोनों तरफ से पैसा मिल रहा है, बराबर है, ठीक है ना? So covered strategy में in this case, what is the script which I should, I mean, what is the put मुझे बेच करना है ना? नहीं, अगर आप पुट वाला कर रहे हैं, तो आपको जब HPCL 250 का चल रहा है, तो आपको 230 का पुट बेचना चाहिए, 230 का पुट बेचना चाहिए, अगर आपको शेयर खरीदना है और आपको उतना कैश आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। मतलब अगर आपको 2700 इंटू 230 के हिसाब से जितना पैसा आता है उसके अकाउंट में अगर आपको पैसा है, तो आप 230 का पुट जो है, मान लीजिए आपने 5 रुपए में बेचा, बराबर है, तो या तो आपको महीने के एंड में 5 रुपया मिल जाएगा, 5 इंटू 2700 यानी कि 12,500 रुपए आपको मिल जाएगा, 2700 इंटू 5 जो भी होता है 13,500 रुपए मिल जाएगा। या फिर अगर वो नीचे चला गया तो आपको 230 माइनस 5 यानी 225 में आपको शेयर पड़ेगा, यानी कि जब HPC का भाव 240 रुपए चल रहा है, 245 चल रहा है, आपको गारंटेड या तो 225 में शेयर मिलेगा या आपको 13,500 मिलेंगे, मतलब दोनों तरफ से आपको फायदा है। राइट, ठीक है ना? बट इसमें क्या है कि इसमें आपको डिसिप्लिन रखना है, इसमें आपको फिर जो है वो ये बहुत सारे इश्यूज आएंगे कि यार ये तो शेयर बहुत गिर गया, मैंने अगर नहीं किया होता तो मैं तो शेयर 220 में भी ले सकता था, वो सब इश्यूज आएंगे। बट आपने जब डिसीजन लिया, उस मोमेंट पे आपका डिसीजन ये था कि या तो मुझे 13,500 रुपए मिले या मेरे को मेरा शेयर 225 रुपए मिले, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहिए। ओके। अगर आप इधर उधर ऊपर नीचे होने लगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा।
तो सर मेरा ideally एक क्वेश्चन है 255 सर इसी में एक पूछना है मुझे 255 सर। का ये जो नहीं, एक हेलो मिनट पहले इनको पूरा करने दीजिए। हाँ so 255 का कॉल at हाँ 13 rupees में बेच के today I exited at 11 rupees. हाँ, तो आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। वो फॉर्चुनेटली है कि आज गिर गया था। अगर मान Yes, लो ऊपर चला जाता तो तकलीफ होता था। तकलीफ होता So था ना। तो ऐसा काम नहीं करना है ना अपने को। बिल्कुल बिल्कुल। अपने को ऐसा तो काम नहीं करना है कि वो अगर पोजीशन, और आप सदा ये मान के चलिए कि मार्केट आपके उल्टा जाएगा, आप ये मान के चलिए सदा, तो यू आर so प्रिपेयर्ड फॉर दैट पोजीशन। अगर ऐसा हो right गया right right. तो ऐसा मत कीजिए सर। So when सर the सर share मेरा एक price is क्वेश्चन है moving up, सर। when the हेलो। when the share price is drastically moving up, या हाँ, it is very risky to take a नेकेड पोजीशन sell a call नहीं, टू डू ए नेकेड पोजीशन। अगर कवर करके चल रहे हैं तो naked आपको position शेयर में cover फायदा हो जा करके रहा है ना। शेयर में okay फायदा हो okay गया ना। अगर आपका शेयर एचपीसीएल वाला 250 से 280 हो जाता है, हो जाने right दीजिए। आपने तो डे 1 पे फिक्स कर लिया था कि मेरे को इतना प्रॉफिट आना चाहिए। आपका बराबर प्रॉफिट okay 8% का टारगेट लेके चले। अब एक महीने में 8% आपको रिटर्न आ गया, कहाँ मिलेगा आपको 8% रिटर्न? जरा मुझे बताइए। दुनिया का right कोई right भी और आपका बिजनेस बता दीजिए जो एक महीने के अंदर 8% रिटर्न देता हो। कोई भी एक बिजनेस बता दीजिए मुझे। नहीं कोई नहीं देता 8% रिटर्न अगर आपको एक महीने में एचपीसी में मिल जा रहा है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार। अगले महीने फिर आप उसमें एचपीसी में कीजिए, फिर या तो 2% मिलेगा या 8% मिलेगा। मतलब एवरी मंथ आपको 2% मिलेगा, 8 या 9% मिलेगा, 2% मिलेगा, 8 या 9% मिलेगा। और क्या चाहिए अपने को यार। so they हम are हम they are म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बहुत खुश है कि मेरा एनएवी इतना बढ़ गया। अरे वो एनएवी पेपर में बढ़ा है, आपको पैसा कहाँ मिला? कितने लोग मुझे बताइए म्यूचुअल फंड से एग्जिट होते हैं? वो लेके बैठे रहेंगे 10 साल तक, 15 साल तक, या मेरे को जो है मेरा 8% का रिटर्न आ गया, 9% रिटर्न। 9% का रिटर्न उनको पीरियड ऑफ 10 ईयर आया है। यहाँ हम एक correct महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। right so we need not bother about the strike prices abhi whether it is 255 or 250 that कुछ भी depends हो, on the premium कुछ भी हो। मैंने हमारा जो स्ट्राइक प्राइस हमने सिलेक्ट किया था वो हमने हमारा प्रॉफिट टारगेट के हिसाब से लिया कि मेरे को 2% का एचपीसीएल में प्रॉफिट चाहिए। तो मैं ऐसा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूंगा कि जिसका प्रीमियम मुझे 2% मिल रहा है। तो या तो 2% मिल जाएगा या आपको 6-7% का प्रॉफिट आएगा। दोनों में से एक आपको पोजीशन होने वाला है। और नीचे अगर गिर गया तो वो 2% का आपको ब्रेक इवन मिला हुआ है। मतलब कि 250 से 2% नीचे आ गया तब भी आपका जो है यू आर इन सेफ पोजीशन। तो तीनों तरफ से आप सेफ है। अगर so वो the 2% cover से So ज्यादा now गिर I गया तो can ask a question. so the covering has Sir, to I be would done ask at a the question. same time as we take या a position या immediately हाँ, yeah आपको जो भी पोजीशन करना है साइमल्टेनियसली करना है। अगर आप वेट करेंगे तो देन यू आर ओपन टू द मार्केट। फिर कुछ भी हो okay सकता है, okay कुछ भी ऊपर भी जा right सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है सर सर thank you मैं भी सर आपको मेरा एक क्वेश्चन मैं है। अभी आपको इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताता हूँ। हाँ सर थोड़ा सुनिएगा। मैं क्या करता हूँ मैं कि अभी जैसे अगर मान लो मुझे पता है कि एचपीसी ऊपर जाने वाला है या बीपीसी ऊपर जाने वाला है, ये प्योरली फॉर इंट्राडे है। ये मतलब आप ये एक महीने वाला स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। ये okay अगर आपको समझ में आता है तो ही करना, नहीं तो मत करना। इसमें yeah क्या है कि अगर आप एनालाइज करेंगे पुट का प्राइस और कॉल प्रीमियम का जो प्रीमियम होता है और जो शेयर का प्राइस है, इनवेरिएबली ऐसा देखा गया है कि प्रीमियम जो होता है वो 1 गुना बढ़ता है, शेयर 2 गुना बढ़ता है। right फिर से सुनिएगा। अगर जैसे आपने 250 का एचपीसीएल का शेयर चल रहा है और 250 का कॉल का अगर प्राइस देखेंगे तो वो जो कॉल का जो प्रीमियम है वो आपका 1 रुपया बढ़ेगा अगर शेयर आपका 2 रुपया बढ़ा है। ये आप देखिएगा, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए आप, ठीक है। okay तो मैं क्या करता हूं मैं कि मैं उसी समय जैसे ही मैंने 250 का शेयर का लॉट खरीदा, मैं उसी समय 250 का लॉट बेच देता हूं ऑन द स्पॉट। साइमल्टेनियसली दोनों पोजीशन करता हूं। अभी क्या होता है कि जैसे ही एचपीसी का शेयर 10 रुपया ऊपर जाता है तो कॉल मेरा 5 रुपये ऊपर जाएगा, बराबर है। तो मेरे को नेट में 5 रुपए का फायदा हो रहा है। भाई शेयर में 10 का फायदा हुआ और उसमें 5 का फायदा हुआ, और ये 2-3 दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो मतलब कि आपको 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपको 5 रुपए एचपीसी में मिल गया। 5 रुपया इंटू 2700 यानी कि आपको अगेन 13,500 रुपए मिल गया। और नीचे में मेरा प्रोटेक्शन, क्योंकि मैंने एटीएम कॉल बेचा है, 250 का कॉल बेचा है, तो मेरे को अगर वो 10 रुपया मिला हुआ है तो 10 रुपये नीचे तक मेरा प्रोटेक्शन अवेलेबल है। तो मैं मतलब जो है दोनों पोजीशन एक साथ लेता हूं और उसको 1 दिन में या 2 दिन में पोजीशन को कवर करके मैं बाहर आ जाता हूँ, मतलब स्क्वायर करके बाहर आ जाता हूँ। तो ये अगर आप कर सकते हो तो देखना, नहीं तो मत करना। ये मैं करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा मॉनिटर कर ले रहा हूँ उसको। okay अगेन से बोल रहा हूँ कि कॉल का रेट 1 रुपया बढ़ेगा तो आपका शेयर का प्राइस 2 रुपया बढ़ेगा, ठीक है।
अभी आपको ये देखना है कि जैसे ही वो एचपीसीएल का शेयर 10 रुपया बढ़ जाए या 5 रुपया बढ़ जाए, जो भी बढ़ जाए, 3 रुपया बढ़ जाए, तो यानी कि कॉल का रेट आपको 1.5 रुपया बढ़ गया, 3 रुपया उधर बढ़ गया, 1.5 रुपया का फायदा हो रहा है, बाहर निकल आओ, दोनों को बेचो, बाहर निकल जाओ। 1.5 रुपया यानी कि एक दिन में आपको जो है 5,000 रुपये मिल गया, इट विल बी वेरी हैप्पी। भाई 5,000 रुपये मेरे को रोज का टारगेट है, 5,000 रुपये अपने कमा लिया, अपने शांति से बढ़ गए। राइट, तो ऐसा चाहो तो कर सकते हो आप। या बढ़िया सर। मैं ये वाला स्ट्रेटेजी काफी करता हूँ, मतलब काफी करता हूँ कि मतलब दोनों का एक साथ खरीदूंगा, उसको लूंगा और उसको बेच दूंगा। दैट मींस मैंने सर नीचे आप का एक ब्रेकअप बीच पड़ा में या सर हाँ आप बोलिए। एक बीच में एक स्ट्रेटेजी लिए थे, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट हाँ, सर यू सजेस्टेड इन ए स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी वी हाँ, शुड बोथ कॉल का और पुट का वो हाँ, आउट ऑफ मनी का रेंज में जाके हमको बेचना है, ठीक है। हाँ, ठीक बट है। आप एक स्ट्रैटेजी सर डाले थे बीपीसी का जहाँ पे हाँ, पुट एंड कॉल दोनों का 440 रुपया दोनों का रखते हैं। हाँ, तो वो उसका मतलब ये है कि वो आपने ओटीएम नहीं किया है, कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है। जो मैंने आपको ओटीएम वाला बताया हाँ था कि जब 440 का रेट चल रहा हाँ है, जब 440 का रेट चल रहा है, तो स्ट्रेंगल जो होता है, स्ट्रेंगल में आप ओटीएम कॉल बेचते हैं, ओटीएम पुट बेचते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेडल यस होता है, जो यस स्ट्रेडल, ये दो वर्ड सुनिएगा, स्ट्रेंगल एंड स्ट्रेडल। स्ट्रेडल में आप एटीएम प्राइसेस पे यस काम करते हैं। एटीएम प्राइस यानी कि 440 का ये शेयर चल रहा है, 440 का ये आप कॉल बेच रहे हैं, 440 का ये आप पुट बेच रहे हैं। तो आपको जो मैक्सिमम प्रीमियम मिलता है ना, वो आपको मिलता है एटीएम के ऊपर। तो आप जिस दिन आप एक्सपर्ट हो जाओगे, जिस दिन आप रियली ओके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन यू कैन डू द स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी। अदरवाइज स्ट्रेडल वाली जो है ना, वो बहुत वोलेटाइल होती है। वो जैसे शेयर भागता है, वैसे स्ट्रेडल का वो आपका कॉल और पुट का प्रीमियम भी ऊपर नीचे भागता है। तो अगर आप नहीं मैनेज कर पाओगे तो थोड़ा परेशान हो जाओगे, तो उसको मत कीजिए। मतलब सेफर साइड में स्ट्रेंगल को आउट ऑफ द मनी में दोनों साइड पुट एंड कॉल को रखना है। या स्ट्रेंगल में आपको इतना बड़ा रूम मिल जा रहा है, आपको सेफ्टी मार्जिन काफी बड़ा है, क्योंकि आपको दोनों तरफ में, जैसे आपने 440 का हाँ अगर रेट स्ट्रेडल चल रहा वेडल है, नहीं समझ के नहीं करना चाहिए। नहीं अभी मत कीजिए, अभी मत कीजिए उसको। कम से कम 1 साल अभी आप पहले ये कीजिए, जब 1 साल में मास्टरी हो जाए, आपको लगे कि हाँ मैं अच्छा पैसा बना रहा हूँ उसके अंदर, तब आप जो है स्ट्रेडल में शिफ्ट कीजिए, अभी मत कीजिए। सर अभी क्वेश्चन है, नहीं, वन एट ए टाइम, या क्वेश्चन आई एम मेकिंग सर आप जो बता एवरीबॉडी रहे हैं मल्टीपल टाइम आप एग्जिट कर सकते हैं। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम आप एग्जिट कर सकते हैं। अरे आप 10 मिनट के बाद में एग्जिट कर सकते हैं, कौन रोक रहा है आपको? मैंने आज बताया ना, मैंने आज मैंने 500 का बीपीसीएल का जो पुट था वो 65 में बेचा, और वो वापस मैंने 50 रुपए आया उसको वापस खरीद लिया 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर 15 रुपए आया मेरे को, क्योंकि वो जो है आज जो है बीपीसीएल का जो भाव था वो 445 आया, और 445 से वापस 464 आया। तो जैसे ही वो 464 गया, तो मेरा जो पुट का जो प्राइस था वो 50 रुपए हो गया। तो मैंने जो 65 में बेचा था वो मैंने 50 में उसको कवर कर दिया आधा घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर मतलब। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपका कैपेसिटी है 3-4 लॉट करने का, तब आप ये सब आप गेम खेल सकते हो। यस एक में होगा तो सर इसी में क्वेश्चन है, सब प्राइस इज 465, पुट ऑफ 500। हाँ वो अरे वो मैंने डीप इन द मनी मैंने बेचा है। मैंने जो किया था वो डीप इन द मनी वाला बेचा है। हाँ वही, हाँ वो कर सकते हैं ना, कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन वो आप नहीं थोड़ा संभाल पाओगे इसको, क्योंकि देखो प्रीमियम 65 रुपीज का, मतलब 65 इंटू 1800, क्योंकि मैं क्या कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ कि ये महीने के अंदर बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट का प्राइस 600 रुपया का जो चांसेस है वो गवर्नमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए। अगर मार्च में अगर गवर्नमेंट ने बीपीसीएल का भाव अगर 600 रुपए का अनाउंस कर दिया, तो पक्का जो है ये बीपीसीएल का भाव 500 रुपया हो जाएगा। अगर वो 500 रुपए का हो गया, तो मेरे को पूरा का पूरा जो 50 रुपया या 65 रुपए का जो प्रीमियम वो मेरा घर में आने वाला है। यानी 65 इंटू 1800 यानी कि सम लाइक अराउंड मोर देन 1 लाख आई विल गेटिंग इन वन डील ओनली। तो आई हैव टेकन दैट पोजीशन बिकॉज मेरा कैपेसिटी है कि 65 पे भी ले सकता हूँ, मैं 50 पे भी ले सकता हूँ, 35 पे भी ले सकता हूँ। तो मेरा अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि एक स्क्रिप्ट पे मास्टरी कर लो आप। सर एक क्वेश्चन है मेरा, एक और क्वेश्चन है। तो आप 65 में कर सकते हैं अगर आप। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि सपोज आई एम, हाँ बोलिए। सपोज आई एम हैविंग अ फंड ऑफ 15 लाख, अगर 15 लाख का मेरे पास फंड है, तो कैन आई टेक पोजीशन इन 2 स्क्रिप्ट? हाँ 2 स्क्रिप्ट मत कीजिए, 2 लॉट में कीजिए, तब ज्यादा कमाएंगे आप।
2 स्क्रिप्ट में मत जाइए। 15 लाख है, एक स्क्रिप्ट में कीजिए और उसको एवरेज कीजिए, अगर नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है उसमें मतलब ज्यादा मैं पैसा, उसमें ज्यादा पैसा कमाएंगे। दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के पुट बेच दूं? हाँ वहाँ वो कर सकते हो, वो कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैगरिंग और या स्टेपिंग अप। यानी कि क्या करेंगे आप कि जैसे अभी आपका बीपीसीएल का भाव चल रहा है, जैसे मान लीजिए 450, तो आप 450 जब है तब आप 430 वाला पुट बेचेंगे। अब 430 वाला पुट मान लीजिए आपने 15 रुपए में बेचा, ठीक है। अभी वो जैसे ही अगर मान लो बीपीसीएल का भाव 430 आ जाता है तो फिर आप 400 वाला पुट बेच दीजिए, फिर 400 वाला पुट बेचिए, ठीक है ना। ओके, लेकिन जैसे 430 का भाव क्या, जैसे ही 430 का भाव आएगा तो शेयर मुझे खरीदने पड़ेंगे। हाँ वो तो एक खरीदा तो आपने एक का और पैसा पड़ा है ना आपके पास में, तो हाँ, एक पड़ा है। तो दैट मीन्स कि आपने एक आपने शेयर खरीदा 430 माइनस 10 420 रुपए में, और एक आप दूसरा खरीद रहे हो 400 वाला फिर माइनस 10 करके 390 में, यानी कि 390 में खरीद रहे हो और 420 में खरीद रहे हो। वो इसलिए कर पा रहे हो कि आपके 15 लाख रुपए है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए होता तो आप एक ही कर पाते। तो सर इसमें अगर मान लो मुझे जो मैं एक में कीजिए, दो में मत कीजिए कभी। ये समझ गया आपकी बात। इसमें मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने बताया 430 का मैंने पुट खरीदा और एक हफ्ते के बाद 430 का रेट आ गया, हाँ तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा? ऑर्डर क्यों एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपने तो अभी वो तो पुट बेचा है ना, आपको तो 1 महीने तक वेट करना है। नहीं, अगर बीच बीच में मान लीजिए प्राइस नीचे आ गया, हाँ तो वो तो सेटलमेंट हो जाएगा ना सर? नहीं, आपकी मर्जी है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड आपको 26 मार्च तक है। 26 मार्च तक कभी भी इसको एक्सपायर कर सकते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए मैं 430 का पुट बेचता हूँ और रेट 420 हो गया, हाँ तो आपको पुट में लॉस चालू हो जाएगा, आपका पुट में लॉस चालू हो जाएगा, लेकिन आपका जो नेट कॉस्टिंग है वो तो 420 ही रहेगा ना। कभी भी आप कीजिए, अगर आप मंथ एंड में करेंगे तो 420 में पड़ने वाला है। तो वो चाहे भाव 400 हो जाए चाहे 380 हो जाए, आपका भाव 420 रुपए फिक्स कर दिया आपने डे 1 पे, कि मैं डे 1 पे या तो मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट रहेगा या मैं 420 में शेयर खरीदूंगा। उसको आप चेंज नहीं कर सकते यार। लेकिन स्ट्राइक प्राइस से अगर शेयर प्राइस नीचे गया तो वो जो खरीदने की प्रोसेस है वो मंथ एंड में करेंगे ना, वो मेरे ऊपर है या आई कैन बाय इन बिटवीन आल्सो? नहीं, हाँ यू कैन बाय इन बिटवीन आल्सो। मैंने बताया ना कि आप तो कभी भी पोजीशन एक्सपायर कर सकते हैं ना आपका, लेकिन जब आप बीच में करोगे तो आपको थोड़ा वो टाइम प्रीमियम का लॉस होगा। मतलब मंथ एंड पे जब जाएंगे तभी आपका जो टाइम वाला जो इसमें थीटा वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो उस समय आपको नेट 420 में पड़ेगा। बीच में करोगे तो 425 426 में पड़ेगा। मान लीजिए शेयर प्राइस 410 हो गया सर, तो क्या होगा उस केस में? तो उस केस में आपका पुट में आपको लॉस ज्यादा हो जाएगा ना। नहीं, लेकिन लॉस मतलब नॉशनल लॉस होगा। हाँ नॉशनल लॉस तो होगा, लेकिन जब आप दोनों पोजीशन आप एक्सपायर करेंगे ना, फिर आप अगर 410 में ले लिया, अगर आपने पुट एक्सपायर नहीं किया तो पुट की पोजीशन आपकी खड़ी है ना, तो पुट को भी तो आपको एक्सपायर करना पड़ेगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको लास्ट वीक में जाके कीजिए। अगर आपको शेयर खरीदना ही है, अगर आपको शेयर खरीदना ही है या आपको शेयर की डिलीवरी देनी ही है कॉल वाले केस में, तो इसको लास्ट वीक में जाके कीजिए, बीच में मत कीजिए। बीच में करेंगे तो थोड़ा आपको कॉल में पुट में थोड़ा आपको लॉस होगा, पर नेट में अगर आपको फायदा हो रहा है तो दोनों करके बाहर निकल जाइए। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि 2 रुपया बढ़ता है वो 1 रुपया बढ़ता है। अभी आपको नेट में मेरा 5000 का टारगेट है, 5000 रुपए मेरे को प्रॉफिट दोनों पोजीशन में आ रहा है, मैं दोनों पोजीशन एक्सपायर करके बाहर निकल जाऊंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो एचपीसी कितने पे गया और प्रीमियम कितने पे गया, मेरे को दोनों में पोजीशन 5 रुपए का फायदा हो रहा है। ये मेरा टारगेट था एक दिन का, एक दिन में 5000 रुपए कमाया, बाहर निकल गया, ठीक है ना। वो सेम वही पुट वाले। हाँ या सर अभी ओके, if you I can easily see if you start really playing in one script, you'll start making quite a bit of money actually. Okay, now there are two. One is there is some money, I mean enough money you'll start making. You need to invest in long term also, right? Like अरे यार like, मैं बता रहा हूँ, सुनो केशव, इंडेक्स सुनो मेरी बात यार। अभी क्या है कि आपका यू वांट टू वर्क लाइक अ बिजनेसमैन और यू वांट टू वर्क लाइक अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल जनरल इन्वेस्टर। हमारे सबके दिमाग में ये घुसा हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अरे लॉन्ग टर्म में अगर मेरे को रिटर्न 0.5% का आने वाला है तो मेरे को लॉन्ग टर्म की क्या वैल्यू है। मेरे को तो हर महीना अगर मेरे को 2% का रिटर्न आ रहा है वो ज्यादा अच्छा है, या लॉन्ग टर्म में मेरे को 12% का रिटर्न आएगा वो ज्यादा अच्छा है। सर
Okay, no, not that. So in that case, अरे यार मेरा एक रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर, जरा बताइए। नहीं समझ गया सर। Let us continue. Okay, you are getting every month. नहीं आप क्या मैं समझ रहा हूँ, आप यह जानना चाह रहे हैं कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी नहीं करते हैं, मान लीजिए अगर आपको ये कवर्ड का स्ट्रेटेजी आपको नहीं समझ में आ रहा है और यू आर नॉट कंफर्टेबल दैट वन, then I will request you to invest only in Nifty 20. Nifty 20 is a ETF. ETF में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, you are investing in top 50 companies of India. आपका रिटर्न मिनिमम 12%, 12 से 14% रिटर्न आपको आएगा। जब इंडेक्स ने पिछले 50 साल का जो हमारा सेंसेक्स का जो हिस्ट्री है, उसने 16% का रिटर्न दिया है। आप मान के चलिए कि आपको अगर आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 14 से 15% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में आना ही आना है। फिर क्यों शेयर में अपना जो अपन सिर्फ फोड़ेंगे कि मैं कभी रिलायंस खरीद लूं, कभी मैं एचडीएफसी बैंक खरीद लूं, छोड़ दीजिए सबको। एक ही चीज में इन्वेस्ट कीजिए, भूल जाइए सब, आपको 14-15% रिटर्न आ जाएगा साल। ठीक है, ये समझ गया। Now let us say, okay, then in that case, let us say calls we are very much comfortable. We'll get into calls only. So forget about Nifty. जो भी है Nifty भी बेच दो। Start. Now your capital keeps on increasing. So the idea is you keep on increasing number of lots. That should be the strategy, right? Over a period of time, you start accumulating. Your expense is definitely less than what you have. 24% का आपका expense नहीं है, because you are already getting in interest, you are getting pension. And so unless you have a health problem, you will not really get into much expenditure. So you are actually starting to get accumulating. So that also you need to employ. So the only way is अरे वो खर्च कीजिए ना। अरे खर्चा तो करेगा। स्पेंडिंग द मनी यार। मुझे बताओ कैसा हो, हाउ मेनी पर्सन्स आफ्टर रिटायरमेंट आर कंफर्टेबल स्पेंडिंग द मनी द वे दे वांट? यू टेल मी, हाउ मेनी पर्सन्स आर कंफर्टेबल? इवन जो अपने डायरेक्टर और चेयरमैन भी जो होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, रिटायरमेंट के बाद में मतलब वो भी उसी लेवल पे जाते हैं जो अपना ए ग्रेड ऑफिसर का होता है। और इफ यू आर एबल टू जनरेट द मनी एवरी मंथ, स्पेंड द मनी यार, एंजॉय द लाइफ ना। फिर भी बचेगा तो नहीं सीरियसली, you are also, I'm telling you, see maximum क्या है, कॉस्टली रेस्टोरेंट में जाके खाएगा, ओके, एक दो टूर करेगा, फिर भी बचेगा। So you need to, what I'm asking, first you spend one lot, then not too late, go for the world tour. Okay, ठीक। नहीं स्पेंड कीजिए। नहीं मैं कैशो में इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि अभी अपना एज है 60-61, बराबर है, ठीक है ना? तो मैक्सिमम यू विल बी एबल टू ट्रेवल अप टू 65 और 68 ओनली। वंस यू रीच 70 यू नॉट एबल टू इवन द ट्रेवल आल्सो। आपको घुटने का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको हार्ट का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, पता नहीं कुछ क्या 100 प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो जो घूमना है इसको एंजॉय कीजिए ना 5 साल के अंदर। नेक्स्ट 5 ईयर में आप ये मान लीजिए मुझे हर साल एक जगह जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार मैं मतलब यूके जाऊंगा, एक बार मैं आपका यूएस जाऊंगा, एक बार ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, अफ्रीका जाऊंगा, घूमिए, खर्च कीजिए ना पैसे को। यू विल रियली एंजॉय योर लाइफ। अदरवाइज अगर वो पैसा ही बचाते रहेंगे, उसको बढ़ाते ही रहेंगे, तो फिर क्या फायदा है? एक दिन छोड़ के चले जाएंगे सारा पैसा। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो अभी लॉन्ग टर्म का मत सोचिए। लॉन्ग टर्म ये सब ना, ये मिसनोमर है जो म्यूचुअल फंड वालों ने हमारे दिमाग में भर दिया है। ये लॉन्ग टर्म वो लॉन्ग टर्म हमारे दिमाग में भर के वो लोग पैसा कमा रहे हैं। म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं ना, वो 1-1 करोड़ की सैलरी ले रहे हैं हमको बेवकूफ बना के। तो लेट अस कम आउट ऑफ द लॉन्ग टर्म ना फिलॉसफी। आज ये बहुत आसान है बोलने का कि एचडीएफसी बैंक में मैंने इन्वेस्ट किया होता तो मेरा पैसा 200 गुना बढ़ गया होता, या मैंने इन्फोसिस में जब वो शेयर आया था उस समय मैंने डाला होता तो आज मैं करोड़पति होता। लेकिन सवाल ये है कि उस दिन जिस दिन इन्फोसिस का हुआ था किसको पता था? सिमिलरली आज हम खड़े हैं और आज इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं या इतने सारे इन्वेस्टमेंट हैं, क्या मुझे पता है कि ये वाला शेयर इन्फोसिस बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, आई डोंट नो। तो 1000 स्क्रिप्ट में से 2 स्क्रिप्ट इन्फोसिस बनेगी आज के 20 साल के बाद में, बट बाकी 998 स्क्रिप्ट का क्या होगा? आई डोंट नो। और मैं अगर 998 में आ गया तो मेरा पैसा आधा भी हो सकता है। तो आप वो उस तरह से रैशनली थोड़ा सोचिए। डोंट गो बाय द एग्जांपल गिवन बाय नाउ दिस आर म्यूचुअल फंड फेलो कि अगर आपने एचडीएफसी में लगाया होता, अगर आपने आईटीसी में लगाया होता तो आपका पैसा 1000 गुना हो गया होता। अरे अगर आपको पता होता तो आपने क्यों नहीं लगा लिया था? जिसने जो बोल रहा है उसने क्यों नहीं लगाया था पैसा? उसने तो किसी को पता नहीं था ना। बराबर, करेक्ट ना? तो ये सब है ना, ये सब बकवास है। ये आई जस्ट डोंट बिलीव इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हर महीने अगर आपका टारगेट होना चाहिए। बिजनेसमैन क्या करता है?
उसको हर महीने उसको पैसा चाहिए, हर महीने उसका जो सामान बेच रहा है उसमें उसको उसका जो 1.5%, 2%, आधा % रिटर्न उसको आना चाहिए। सेम साइकोलॉजी आप लेके आओ, अच्छा पैसा बनाओगे। ये सब भूल जाओ, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड, एफडी सब बकवास है, सब बेवकूफ बनाने का तरीका अपने को। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन है सर, ये जो ऑप्शन चेन में आप देखते हैं प्रीमियम, is there any way that it can be automatically downloaded if I set a particular script कि डेली मुझे दिख जाएगा? नहीं, वो है उसका, ये उसका ये एक्सेल में शीट बनता है, बट वो इतना मतलब है, आपका एप्लीकेशन जैसे हैं कि आप उसको डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारा जो ऑप्शन चेन है उस ऑप्शन चेन का डेटा आ जाएगा। हो सकता है मे बी 2-3 महीने के अंदर में वो पूरा मैं शेयर करूंगा कैसे वो स्क्रीन बनाते हैं, बट व्हाट आई एम फाइंडिंग इज नॉट वेरी, मतलब इतना उसका मजा नहीं है। अरे आप 1 सेकंड लगता है, अपना नेट खोलिए और वो अपना स्क्रिप्ट खोल के देख लीजिए ना उसमें। हाँ वो तो है सर, बट मैं बता मैं सेट कर दूंगा, है वो एप्लीकेशन है, सेट कर देता हूँ। आप एक्सेल में बना सकते हैं, वो डेटा क्वेरी पे होता है, वो डेटा क्वेरी के अंदर हम जो लिंक डालते हैं वो एक्सटर्नल सोर्स का लिंक डालते हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स जो होता है वो एनएससी का साइट रहता है, तो एनएससी साइट का लिंक एज अ डेटा वी हैव टू एक्सपोर्ट इन अवर एक्सेल फाइल, तो वो करेंगे तो इसमें सर वो डेटा आ जाता है। लेकिन मतलब इतना सब एक्सरसाइज करने से बढ़िया है सीधा तुरंत जाओ मोबाइल पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, आपको ऑप्शन चेक नजर आ जाता है ना। और तो सर आप सजेस्ट करते हैं क्या ये सर, ये जो सेंसिबल का सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है? अरे सब देखने के लिए मैंने लिया हुआ है, मैंने उसमें 10,000 रुपए दिया था, साल भर का लिया हुआ है, मैंने 10 दिन भी यूज नहीं किया उसको। अच्छा, मैं बताऊं उसका वजह क्या है कि वो लोग जो बताते हैं ना, वो लोग बताते हैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, वो जो सारी स्ट्रेटेजी, वो लोग स्ट्रेटेजी कौन सा बताएंगे, आपका आयरन कंडोर, आपका जो है स्प्रेड, आपका बटरफ्लाईज, वो सब अपने लायक नहीं है। वो सब जो होते हैं ना, जो हार्डकोर जो गैम्बलर्स होते हैं, जो जितने भी लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, दे आर हार्डकोर गैम्बलर, उन लोगों के लिए सुटेबल है। हम लोग तो क्या है, बीपीसीएल में, एचपीसीएल में, आईओसी में कर रहे हैं, और महीने में कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 2 या 3 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है कि महीने का हमारा 1 लाख रुपए आ जाए, तो उसके लिए वो सबका जरूरत नहीं है। आई डोंट फील कि एब्सोल्यूट, मैं बता रहा हूँ ना, मेरा होते हुए मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैंने पैसा बर्बाद किया उसके अंदर। ठीक है, मेरे को सीखने के लिए देखना था क्या चीज है क्या नहीं है, इट्स टोटल यूजलेस थिंग। इट इज ओनली इफ यू आर डूइंग। हम लोग तो सर एक दो लॉट में काम कर रहे हैं, एक ही दो लॉट में काम कर रहे हैं, ये सब कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वो लोग आप देखिए, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप शेयर्स में कीजिए, वो सदा बोलते हैं कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी में कीजिए। क्यों? कि उनको ब्रोकरेज में अच्छा मिलता है, उनको आपके ब्रोकर को अच्छा ब्रोकरेज मिलता है, क्योंकि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में करेंगे तो आप 10 लॉट 20 लॉट का काम करेंगे, तो उनको उसमें अच्छा ब्रोकरेज आएगा। और बीपीसीएल में करेंगे तो क्या करेंगे, महीने के 2 ट्रांजेक्शन करेंगे, 2 ट्रांजेक्शन में वो कितना मिलेगा, 40 रुपए मिलेगा। यानी कि एक अकाउंट आपका है, उसको महीने का 40 रुपए मिल रहा है। तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही विल नॉट एनकरेज यू टू डू इन बीपीसीएल, ही विल एनकरेज यू टू डू इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो उसमें उनको ब्रोकरेज आए इसको। तो मैं ऐसा काम काय को करूंगा कि दूसरा आदमी जो है पैसा मेरा कमा कोई दूसरा रहा है, मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? मैं तो भैया वो करूंगा जिसमें मेरा कवर्ड पोजीशन हो, जिसमें मेरे को पैसा है। आई एम नॉट बॉदर्ड कि उसको क्या पैसा मिलता नहीं मिलता। तो आप चाहो तो आप करो, बट मैं नहीं करता। मैं निफ्टी बैंक नहीं करता। पूछ रहा था कि 1-2 लॉट के लिए ये सब नहीं चाहिए जो है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। नहीं 1-2 लॉट क्या 5 लॉट में कर रहे हैं तब भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए उसके अंदर? आपका दिमाग, अरे आप लोग सब यार इंजीनियर हो, आप लोग सबके सब जो है इतना आपको इतना एक्सपीरियंस है। एक ये पोजीशन बनाने में मतलब 5 मिनट लगता है आपको, मतलब एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आप देख के समझ जाओगे कि यार इसमें मेरे को इतना प्रॉफिट आने वाला है, इतना लॉस आने वाला है। सेंसिबल चाहिए, नहीं चाहिए अपने को। कटारी जी, मेरा एक सवाल है। I want to purchase 1 lot of BPCL. What should be my strategy now? Your strategy should be कि मेरे पास 20 लाख है, मेरे पास 20 लाख है। आप क्या कीजिए, अभी बीपीसीएल का रेट कितना चल रहा है? 449 चल रहा है, ठीक है ना। आप 420 का पुट बेचिए। 420 का पुट आपको करीबन 10 रुपए में मेरे ख्याल से बिक रहा होगा, ठीक है ना। तो 420 का 10 रुपए बिक रहा है, तो या तो आपको 10 × 18,000 रुपए महीने के एंड में मिलेंगे, वो रेंटल हो गया आपका। और अगर आपका शेयर जो है 420 से नीचे गया तो आपको 420 में शेयर खरीदना पड़ेगा, तो आपकी नेट कॉस्टिंग पड़ेगी 410 रुपए, बराबर है। ओके। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपको 18,000 रुपए रेंटल आ जाएगा, या आपको शेयर 410 में आ जाएगा, दोनों में से एक चीज होगा।
अच्छा, ओके, स्क्वायर ऑफ ऑटोमेटिकली होता है ना, खाली पुट बेच देने से हो जाता है? नहीं, ऑटोमेटिकली भी एक्सचेंज करता है, वो मंथ एंड में जाके करेगा। अच्छा, बट मैं उसका सदा ये एडवाइस करता हूँ कि लास्ट वीक तक वेट मत कीजिए उसको, उसके एक वीक पहले अपना पोजीशन स्क्वायर करके बाहर आ जाइए, देन यू आर सेफ, एंड वो पोजीशन को आप अप्रैल में शिफ्ट कर दीजिए। नहीं, तो हमारा हर में नहीं, मेरा ये है, जो एक लॉट खरीदना है, उसमें तो नहीं खरीदे। अरे तो नहीं खरीदे तो आपको इसका प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मान लो आपने 10 रुपए में बेचा, मान लीजिए 420 का, अभी आपका जो है शेयर का भाव ऊपर चला गया, हाँ, ठीक है, तो आपका जो पुट का जो रेट है वो 10 रुपए वाला कम होता जाएगा, और हाँ, लास्ट वीक में उसका रेट 1 या 2 रुपए रह जाएगा। जब वो 1 या 2 रुपए का रेट हो जाए तो आप उसको स्क्वायर करके 1 या 2 रुपए को छोड़ दीजिए और अपना 9 रुपए का प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाइए, और जो आपका अच्छा। पोजीशन है वो मार्च वाला पोजीशन आप अप्रैल में फिर बेच दीजिए, फिर अप्रैल में ये अपना रेंटल कमाइए, फिर मई में रेंटल कमाइए। जब तक आपका शेयर 420 के नीचे नहीं जाएगा आपको डिलीवरी नहीं लेना है। अच्छा, मान लीजिए 419 में आ गया, तो अभी व्हाट टू बी डन? मान लीजिए मिडिल ऑफ द वीक, थर्ड वीक में 419 आ गया प्राइस, 419 आ गया, जिस दिन आ जाता है उस दिन आप 419 में शेयर खरीद लो, और आपका जो पुट है उसको पुट को स्क्वायर कर दो, तो पुट में आपको 2-3 रुपए का लॉस होगा, तो आपका जो नेट कॉस्टिंग पड़ेगा वो 422 या 423 का पड़ेगा। यू शुड बी हैप्पी, एंड देन यू स्टार्ट सेलिंग द कॉल नाउ। अब आपने माल खरीद लिया, हम तो पुट ही बेचा है ना, तो देन आई हैव टू परचेज। हाँ, तो आपने पुट बेचा है ना, तो अब आपने शेयर खरीद लिया, जब शेयर गिर गया तो आपने शेयर खरीद लिया, ठीक है ना, तो आपको अपना पुट स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, पुट में स्क्वायर करने से आपको शेयर आ जाएगा ना? नहीं, वो नहीं आएगा। वो शेयर अगर आपको ऑटोमेटिकली अगर लेना है तो एक्सचेंज आपको देगा, अच्छा, वो फिर आपको मंथ एंड तक वेट करना है, लेकिन मैं मंथ एंड तक वेट करने का एडवाइस नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, देन पुट का स्क्वायर अप करना है, शेयर अलग से खरीदना है, पुट को स्क्वायर करना है, तो पुट में आपको 1-2 रुपए का लॉस होगा, लेकिन उसमें फायदा ये है कि जैसे ही आपके पास शेयर आपको लास्ट वीक में आ गया, आप अप्रैल का कॉल बेच सकते हो। आप नहीं तो क्या होगा, आपको मंथ एंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में शेयर आपके अकाउंट में 2 दिन के बाद में आएगा। दैट मीन्स कि आपको जो कॉल बेचेंगे आप वो 2 दिन के बाद बेचेंगे, तब तक भाव गिर जाएगा। अभी आप देखेंगे 3 दिन पहले जो भाव था कॉल का, वो रेट ऑटोमेटिकली कम होने लग गई है, क्योंकि अभी वो महीना स्टार्ट हो गया है मार्च वाला। मार्च का मैक्सिमम प्रीमियम आपको मिला था लास्ट वीक के अंदर, जो अभी जो वीक खत्म हुआ है, जो आपको थर्सडे को खत्म हुआ है, अभी आपके रेट अभी नीचे गिरने लगेंगे। तो अगर टारगेट होना चाहिए कि लास्ट वीक के अंदर अपना पोजीशन अपन शिफ्ट करें। समझ गए। अच्छा, अभी जो कवर्ड कॉल हम सेल करेंगे, एक ही अलग अलग दो जो एक्टिविटी है, 2 अलग अलग है, और इट इज द सेम एक्टिविटी? नहीं, अलग अलग मतलब कि आप कॉल बेचेंगे, अगर शेयर अगर आपके पास में है तो आप कॉल बेचेंगे, तो कॉल का एक ही एक्टिविटी होगा ना। शेयर तो आपके अकाउंट में आ गया, शेयर तो आपके अकाउंट में रहेगा। अच्छा, तो एक कॉल बेचेंगे। एक मेरा मान लीजिए वो हम 500 का कॉल बेचा है, अभी प्राइस आ गया 510 आ गया, हाँ, तो अभी आप डिलीवरी दे देंगे। अच्छा, डिलीवरी कर देंगे, मतलब आप शेयर बेच देंगे 510 का रेट आ गया, 510 में शेयर बेच देंगे, साल में आपको थोड़ा नुकसान होगा, वो आप बियर कर देंगे, तो आपका नेट जो सेलिंग प्राइस होगा वो करीबन आपका जो पहले वाला जो प्राइस जो आपने टारगेट डिसाइड किया था 500 प्लस प्रीमियम वाला किया था, तो आपको 506-7 में आपका जो माल बिक जाएगा। तो यू शुड बी वेरी हैप्पी। तो दो अलग अलग सेटलमेंट करना पड़ेगा? हाँ, हर बार आपको 2 करना पड़ेगा, चाहे आप पुट में कर रहे हो चाहे कॉल में कर रहे हो, 2 ट्रांजेक्शन अगर आप मान लो डिलीवरी नहीं दे रहे हैं तो फिर एक ही ट्रांजेक्शन करना है। मान लो अगर भाव आपका 500 से नीचे रह गया तो इसका मतलब आपको डिलीवरी देना ही नहीं है, फिर आप अपना सिर्फ कॉल वाले को ट्रांजेक्शन। अच्छा, उसमें नहीं, ठीक है, हमारा अकाउंट में है तो हमारा मार्जिन भी उसको कम लगेगा ना, वो प्लेज करने के बाद ही होगा वो। नहीं, वो झमेले में मत जाइए आप, उतना मार्जिन रखिए वहां पे। आपको प्लेस करना, फिर वो अनप्लेस करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, अगर डिलीवरी के लिए आपको अनप्लेस नहीं हुआ तो ऑप्शन हो जाएगा। वो प्लेस वाले धंधे में मत जाइए आप। अगर आपको काम करना है तो प्योर मनी रखिए कि हाँ भैया मेरा ये एक लॉट, मेरे 5 लाख का मैंने लॉट खरीद लिया और 2 लाख का मार्जिन है, तो 2 लाख का मार्जिन मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। अच्छा, समझ गया, ओके, क्लियर। जब पैसा है तभी काम कीजिए इन सब चीजों में, नहीं तो मत काम कीजिए। ठीक है। स्क्वायरिंग का बारे में थोड़ा डाउट था। Today I sell a put for 10 rupees. Okay. He's saying somewhere in between, no, the premium comes down to 2 rupees. हाँ, तो उसको स्क्वायर करके बाहर निकल जाओ।
स्क्वायरिंग का मतलब क्या है? यू गेट 8 रुपीज ऑन दिस। स्क्वायरिंग का मतलब ये है कि जब उसका रेट 2 रुपया आ गया है, वो आपने ऑप्शन वापस खरीद लिया, जो आपने बेचा था वो वापस खरीद लिया, तो स्क्वायर हो गया ना पोजीशन आपका। अच्छा, ओके, यू एट द टाइम यू बाय, ओके, हाँ, आपने बाई कर लिया पोजीशन को बाई कर लिया, तो आपने स्क्वायर कर लिया, उसको हम जो है स्क्वायर की लैंग्वेज में बोलते हैं। मतलब ओके, ठीक है, जो आपने खरीदा हुआ है वो बेच दिया, और बेचा हुआ है तो खरीद लिया, दैट मीन आपने पोजीशन आपने स्क्वायर कर लिया। ओके, ठीक है, ठीक है। कोठारी जी, मेरा एक ये है, मेरा एक लॉट है बीपीसी का, मान लीजिए 450 का, हम एक कॉल भी बेचा है, एक पुट भी बेचा है, एक कर सकते हैं। आपने स्ट्रेंगल किया है। हाँ, बट हमारा पास एक लॉट है, तो एक लॉट है ना, एक लॉट है, तो दैट मींस कि अगर वो शेयर ऊपर चला जाएगा तो आपको डिलीवरी दे देंगे आप, प्लस आपको जो पुट वाला प्रीमियम था वो भी आपका हो जाएगा, आपको डबल फायदा होगा। ये सीख लो यार, ठीक है ना। अभी जैसे मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 450 के ऊपर मान लीजिए इन्होंने शेयर खरीदा है, मान लीजिए 450 में बीपीसीएल का शेयर खरीदा, अभी इन्होंने 460 का कॉल बेचा है और 440 का पुट बेचा है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए इन्होंने जो 460 का जो कॉल बेचा है वो मान लीजिए 20 रुपए में बेचा है, सिमिलरली इन्होंने 440 का जो पुट बेचा वो भी 20 रुपए में बेचा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो शेयर 460 के ऊपर जाता है तो इनको डिलीवरी देना पड़ेगा, तो वो डिलीवरी देने के जब वो डिलीवरी देंगे तो उनको कितना फायदा होगा, इनको फायदा होगा 460 माइनस 450, 10 रुपए तो वो मिलेगा इनको, क्योंकि 460 का बेचा था, तो 460 माइनस 450, 10 रुपया तो इनको शेयर में फायदा हुआ, प्लस जो 20 रुपया वो और 20 रुपया कॉल का, 20 रुपया और 50 रुपए का इनको फायदा होगा। 50 रुपया इंटू बीपीसीएल 1800, 90,000 का इनको एक ट्रांजेक्शन में फायदा होगा। अगर वो शेयर 460 के ऊपर चला जाता है तो 90,000 का फायदा होगा। अच्छा, नीचे आ जाता है तो वो अगर 450 का इन्होंने 440 का बेचा था, 440 के अगर नीचे जाता है तो इनको डिलीवरी लेना पड़ेगा। उस वाले केस में उनका शेयर का भाव क्या पड़ेगा, 440 माइनस 40 रुपए, तो 20 रुपए का कॉल का प्रीमियम, 20 रुपए पुट का प्रीमियम, 40 रुपया हुआ, 40 रुपए माइनस 440, 400 रुपए में, यानी कि वो शेयर इनको 400 रुपए में पड़ेगा। मतलब जब भाव 450 का चल रहा है, इनको शेयर की कॉस्टिंग 400 रुपए पड़ रही है। अब वो शेयर अगर 300 रुपए भी हो जाता है मान लीजिए, तब भी इनको शेयर 400 रुपए पड़ेगा। इतना तो कमती नहीं होगा, 300 तो नहीं होगा। नहीं, मतलब आपका वो माइंडसेट होना चाहिए। अभी क्या होता है, कितनी बार प्रॉब्लम, समझ गया। नहीं, वो क्या प्रॉब्लम होता है कि जब आदमी पहली बार जब करता है ना, तो क्या उसके जब उसके घर वाले उसको बोलने लगते हैं कि आपने ये क्यों किया, अरे शेयर तो ऑलरेडी 350 में आ गया, आपको 350 में करना चाहिए था। ये कोठारी जी ने आपको कहाँ फंसा दिया बीच में, ये स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल के अंदर, फालतू के अंदर। आप 350 में आपको वैसे ही ले लेते हैं ना आप। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस समय आपने पोजीशन लिया था उस समय आपका माइंड सेट ये था कि या तो मुझे रेंटल मिले या मेरे को डिस्काउंट में मिले। तो जब आप या तो डिस्काउंट में शेयर मिले या मुझे रेंटल मिले। तो जब आपने वो पोजीशन उस मोमेंट की ली है और उस मोमेंट पे आपने डिसाइड किया था कि ये मेरा टारगेट है प्रॉफिट का और ये मेरा टारगेट है रेंटल का और मेरा शेयर खरीदने का। अब उसके बाद में दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपके टारगेट फिक्स है। जहां आपने ऊपर नीचे होने की कोशिश करी या और लोगों से इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करोगे, आप लॉस खाओगे। आप अपनी पोजीशन को स्टिक रहिए कि भाई मेरे का तो टारगेट था कि मैं 400 में मुझे खरीदना है और मेरे को 500 में मेरे को छोड़ देना है, या तो मुझे 90,000 आएगा या मेरे को शेयर 40,000 में आएगा। ये अपने टारगेट फिक्स है बस। अगर आप इसमें स्टिक रहेंगे तो पैसा कमाएंगे आप। अच्छा, एक हम फ्यूचर भी खरीद सकते हैं, शेयर की जगह फ्यूचर भी कर सकते हैं। बस वो थोड़ा मतलब संभालना, उसको थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आपको तीन पोजीशन स्क्वायर करनी है, तीन पोजीशन देखना पड़ेगा। हाँ, मैं जो करता हूँ उसे फ्यूचर में करता हूँ, मैं शेयर में नहीं करता आजकल। आज मैं फ्यूचर में करता हूँ आजकल, पर उसमें थोड़ा मैनेज करना थोड़ा ज्यादा पड़ता है। वो आप तब कर पाएंगे जब आप 1 या 2 स्क्रिप्ट में कर रहे हैं, तो यू कैन मैनेज इट। बट अगर आपने 6-7 में करना चालू कर दिया तो नहीं कर पाएंगे। हम ये भी सोच रहे हैं कि बीपीसीएल का फ्यूचर भी एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट पार्ट में भी कुछ हो सकता है, ये भी हम सोच रहे हैं। अरे अपना टारगेट है पैसा कमाना बीपीसीएल से। बीपीसीएल से मुझे, मैं जैसे पहले बताया था, मुझे कोई मोहब्बत नहीं है। बीपीसीएल आज बहुत ज्यादा वोलेटाइल स्क्रिप्ट है। बीपीसीएल मुझे पैसा जनरेट करके दे रहा है, तो बीपीसीएल इज डार्लिंग फॉर मी। द डे बीपीसीएल बिकम लाइक एचपीसीएल, आई विल लीव द कंपनी। पहले मैं एचपीसीएल में ज्यादा करता था। एचपीसीएल वाज वेरी वोलेटाइल स्क्रिप्ट था, तो मैं एचपीसीएल में करता था। अभी एचपीसीएल में रोज का मूवमेंट 3 रुपया हो रहा है, और 3 रुपया में मेरे को एवरेजिंग नहीं हो रहा, तो एचपीसीएल मैंने छोड़ दिया, बीपीसीएल में आ गया। कल को अगर आईओसी में अगर वो आपका कुछ डिसइन्वेस्टमेंट अनाउंस हो गया, कुछ हो गया, आईओसी अगर वोलेटाइल हो गया, तो मैं बीपीसीएल छोड़ के आईओसी में चला जाऊंगा। वो तभी होगा कि जब आप प्रॉफिट को प्यार करेंगे, स्क्रिप्ट को प्यार नहीं करेंगे। When you start loving the script, then you can't do all those things. Correct? So अपना target. Can I ask one more? Can I ask one more last question?
क्या बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर ये मेरा एक क्वेश्चन है कि बीपीसीएल का मैंने 430 रुपए में पुट बेचा एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। मेरा कॉस्टिंग हुआ 420। 420 रुपए मेरा कॉस्टिंग हुआ। एक हफ्ते के बाद मान लीजिए रेट 400 रुपये हो जाता है तो मेरा लॉस स्टार्ट हो गया है। तो मैं वेट करूँ कि फिर से रेट वापस 440 आ जाए, 420 आ जाए का। भाई आपका डे वन पे जब आपने ये पोजीशन लिया था, आपको पता था या तो मुझे 10 रुपए का रेंटल मिलना चाहिए या मैं 420 में शेयर खरीद लूंगा, बराबर है जी। 430 में जब आपने बेचा, 430 में बेचा, 10 रुपए का प्रीमियम था, बराबर है। तो आपका उस दिन का इक्वेशन ये था कि या तो मुझे 10 रुपए का किराया मिलेगा महीने भर का, या मैं 420 में आएगा तो मेरा शेयर खरीद लूंगा। अभी वो शेयर चाहे 300 रुपए में आ जावे चाहे 350 में आ जावे, आपको 420 में शेयर खरीदना पड़ेगा। तो आप महीने के एंड में अगर आप ट्रांजेक्शन को स्क्वायर करेंगे तो आपका नेट कॉस्टिंग 420 पड़ने वाला है। तो या तो 420 में शेयर पड़ेगा या आपको 10 रुपए किराया मिलेगा बस। अगर बीच में आपका वो पुट आगा 5 रुपए का हो जाता है, मान लीजिए बीपीसी का भाव 460 रुपए हो गया, तो जब बीपीसीएल का भाव 460 का हो जाएगा तो जो पुट का जो प्राइस था 10 रुपए वाला, वो पुट का प्राइस 5 रुपए हो जाएगा। उस समय आप चाहो तो स्क्वायर करके बाहर निकल जाओ। आप सोचो 10 रुपए मुझे पूरा नहीं चाहिए, मेरा 50% का टारगेट था, मीट हो गया, मैं 5 रुपए प्रॉफिट आ रहा है, पोजीशन स्क्वायर कीजिए, बाहर निकल जाइए, देन यू आर आउट ऑफ दिस इक्वेशन। तो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना। लेकिन मान लीजिए डिप लेता है, इट कम्स डाउन टू 400। अरे यार मैं बताया क्या बताया मैंने आपको, आपका ये शेयर 420 में पड़ेगा, चाहे वो शेयर 300 रुपया हो जाए, चाहे वो शेयर 0 हो जाए। अगर बीपीसीएल का शेयर 0 भी हो गया, आपको 420 में खरीदना पड़ेगा। अगर 420 में नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा जितना डिफरेंस है। कवर्ड का मतलब यही है ना, कवर्ड का मतलब यही है कि आपने 420 का आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है। ठीक है, तो उसके मान लीजिए रेट नहीं, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब रेट 80 रुपए हो गया तो I will have to buy the shares. What should I do? अरे आपको जो भी आपका रेट चल रहा है उसमें वो वाला शेयर का आप जो है अपना शेयर खरीद लीजिए और पुट को स्क्वायर कर दीजिए। तो पुट में आपको लॉस होगा और शेयर आपको नीचे मिलेगा, नेट कॉस्टिंग आपका 420 पड़ेगा। आपका जो नेट जो रेट है वो 420 पड़ेगा। मान लो जैसे अगर बीपीसीएल का भाव 400 रुपए हो जाता है मान लीजिए, ठीक है, तो आप 400 में शेयर खरीद लेंगे आप, ठीक है। जब आप 400 में शेयर खरीदेंगे तो आपका जो पुट का जो प्राइस होगा ना, वो पुट का प्राइस आपका 20 रुपया होगा, 20 रुपया हो जाएगा। तो 400 रुपया प्लस 20 रुपया यानी 420 की कॉस्टिंग पड़ेगी आपकी। तो आपका रेट 420 फिक्स है, चाहे बीपीसीएल का रेट कुछ भी हो जाए, चाहे वो 200 रुपया हो जाए चाहे 150 रुपया हो जाए, आपका भाव 420 रुपया फिक्स है, जो आपने डे वन को फिक्स किया था जब आपने शेड्यूल किया था। जो समझ गया सर, मैं कह रहा हूँ जैसे मेरा स्ट्राइक प्राइस से नीचे चला गया शेयर तो ऑटोमेटिकली सेटलमेंट होकर शेयर नहीं, वो सेटलमेंट आपका होगा एक्सपायरी वाले दिन पे। अगर आपको एक्सचेंज से कराना है तो एक्सपायरी वाले डे में आपको 420 का आपने जो पुट बेचा है 420 के हिसाब से आपको एक्सचेंज को पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, पैसा नहीं कि जिसको मैं नहीं, आपको फिर कुछ नहीं करना है। आपने 420 का पुट बेचा 10 रुपए में, बराबर है, 10 रुपए में 420 का पुट बेचा। अभी भाव 420 के नीचे हो गया, कोई भी रेट रहे 420 419 रहे या वो 200 रुपए रहे, एक्सचेंज आपको 420 के हिसाब से आपको शेयर बेचेगा, आपको 420 में शेयर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक पुट का आपने गारंटी दी है एक्सचेंज को। तो आपको वो 420 में शेयर खरीदना पड़ेगा एक्सचेंज। एक्सपायरी के दिन आपको एक्सचेंज जो है आपको 420 नहीं, उसके पहले अगर आपको करने तो आपको मार्केट में करना है। आप हम नहीं करेंगे, हमको एक्सचेंज फोर्स नहीं कर सकता है ना। नहीं कर सकते। जैसे मैंने जिसको कुछ भेजा है, जिसने कुछ खरीदा है, आपने तो हमको 420 बोला, अभी दे दीजिए। थ्योरेटिकली कर सकता है, लेकिन इनवेरिएबली नहीं होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे ये यूरोपियन ऑप्शन है, एक यूरोपियन ऑप्शन होता है, एक अमेरिकन ऑप्शन होता है, ठीक है। तो जो यूरोपियन जो ऑप्शन होते हैं वो सिर्फ आपके मंथ एंड में ही सेटल होते हैं, और जो अमेरिकन ऑप्शन जो होते हैं वो महीने में कभी भी हो सकते हैं। तो थ्योरेटिकली तो एक्सचेंज आपको महीने के अंदर भी असाइन कर सकता है, बट इनवेरिएबली मतलब 1000 में से या 10,000 में से एक बार ऐसा होगा जब वो मतलब ड्यूरिंग द मंथ जो है एक्सचेंज सेटल कर देगा, अदरवाइज नहीं होता है, वो मंथ एंड में जाके होता है। सर एक क्वेश्चन है,
आप बता रहे थे एचपीसी का वोलेटिलिटी बहुत कम है, तो अगर जिस स्क्रिप्ट की कम है उसमें तो स्ट्रिंगल लगाना बेटर रहेगा। नहीं, उसमें फिर आपको क्योंकि आपको उसमें क्या है, जिसमें वोलेटिलिटी कम है उसमें आपको प्रीमियम कम मिलेगा। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो आपका रिस्क भी कम है तो रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी कम है। अभी जैसे बीपीसीएल वर्सेस अगर एचपीसीएल को कंपेयर करें, हाँ सेफ रहेगा, बराबर है, लेकिन बस आपको फिर वो 1% का मिलता रहेगा। और क्या है, आपने स्ट्रैंगल किया तो 2% मिल जाएगा, और अगर आपने एक कवर्ड कॉल किया या कवर्ड पुट किया तो 1% आपको मिलता रहेगा। बट अगर आपको 2.5% 3% चाहिए तो आप बीपीसीएल में करो, बीपीसीएल ज्यादा वोलेटाइल है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क रिवार्ड प्रोफाइल आप क्या लेना चाह रहे हो, उसके ऊपर है। क्योंकि एचपीसीएल का पहले 220 वाला जो रेंज करीबन 2 महीने से चला था, अभी वो 440 और 450 वाले घर में आ गया है। तो अभी ये 240 और 250 में देखिए 1-1.5 महीने घूमता रहेगा उसमें। फिर हो सकता है कि 1-1.5 महीने के बाद में या तो वापस 260 वाली रेंज में चला जाए या वापस 225 वाली रेंज में जाए, वो किसी को पता नहीं है। तो इसका जो बीटा जो है ना एचपीसीएल का बहुत कम हो गया है, उस वजह से वोलेटिलिटी, इस वजह से वोलेटिलिटी बहुत कम है, तो उसमें मजा नहीं है, उसमें इतना रिटर्न नहीं आ रहा है। जो रिटर्न बीपीसीएल में मिल रहा है वो एचपीसीएल में नहीं रिटर्न आ रहा है, इसलिए मैं एचपीसीएल में नहीं कर रहा। सर एक लास्ट क्वेश्चन ऑन स्ट्रिंगल। सर स्ट्रिंगल में अगर मेरा रेट बहुत ऊपर जा रहा है कॉल का प्राइस, स्क्रिप्ट का प्राइस में, सो कैन आई शिफ्ट माय पुट सेलिंग बेच के फिर ऊपर को ले जाऊंगा, ताकि मेरा रेंज हर समय मेंटेन रहेगा आउट ऑफ द मनी में? नहीं, फिर से बोलिए, क्या फिर से बोलिए, जैसे क्या करना चाहते? जैसे हेलो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अभी 450 का है बीपीसी का, मैं कॉल ऑप्शन सेल किया हूँ 470 में और 420 में कर दिया पुट ऑप्शन सेल। अभी मेरा ये चला गया माने 460 के आसपास, तो कैन आई स्क्वायर ऑफ दिस पुट ऑप्शन एंड टेक इट अप? करना ही चाहिए, थोड़ा ऊपर। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनटेस्टेड साइट को आपने रोल अप किया है। देखिए मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ सुनिएगा, टेस्टेड और अनटेस्टेड। तो इसमें टेस्टेड कौन सा हुआ, आपका कॉल टेस्ट हो गया, क्योंकि कॉल आपका उसके ऊपर चला गया, तो उसको आपको टच नहीं करना है, आपको पुट को रोल अप करना है। तो 220 वाले में आपको ज्यादा प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा, तो 220 वाले को आप प्रॉफिट बुक कर दो, और 420 वाले को 430 में शिफ्ट कर दो या 440 में शिफ्ट कर दो। तो दैट इज नोन एज द रोलिंग अप द पोजीशन। तो उसमें क्या है कि आपने अपना प्रॉफिट आपने लॉक कर दिया, प्रॉफिट आपने निकाल लिया और पोजीशन को ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अनटेस्टेड साइड पे करना है, कभी भी टेस्टेड साइड में नहीं करना है। मतलब आप जो कॉल में ये सब करने की कोशिश मत कीजिए, उसमें तो और लॉस बढ़ सकता है। आप अनटेस्टेड वाले में कीजिए, तो आपको करना है अनटेस्टेड वाले साइड में करना है। वो स्ट्रेटेजीज में थोड़ा बाद में समझाऊंगा, तब लोग थोड़ा ये समझने लगेंगे। ये जो एडजस्टमेंट वाली जो स्ट्रेटेजीज है ना, मे बी आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ आई विल एक्सप्लेन। बट कॉन्सेप्ट यही है कि आपका सर दो चीज मेरा रिक्वेस्ट है, एक ये वाला सर, और एक दूसरा जो आप स्ट्रेटेजी लेते हैं उसको सर 1 महीना का बाद थोड़ा एक बार समझाइएगा। हाँ, वो थोड़ा बाद में करेंगे। अरे आप खुद समझने लग जाएंगे। आप पहले स्टार्ट कीजिए इसको, और स्ट्रेंगल वाले में या कवर्ड कॉल में या कवर्ड पुट में करके देखिए, 1-2 महीना देखिए, देखो पैसा आ रहा है क्या। अगर आपको पैसा आ रहा है तब आप इसमें थोड़ा और एडवांस में बढ़िए। एकदम से जो है आप उसमें मतलब टॉप गियर में मत आइए, प्रॉब्लम हो जाएगा। मे भी 2 महीना 3 महीना 4 महीना वेट कीजिए, डोंट वरी यार, मार्केट भी यही है, अपन भी सबको यही है। ठीक है, थैंक यू सर फॉर बीपीसीएल मंडे आधा घंटे का टारगेट 1.5 घंटे का हो गया। हाँ बोलिए। यस सर मंडे एट व्हाट टाइम यू विल बी फ्री? जस्ट बीपीसीएल का ये मैं इनवेरिएबली नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी कॉल ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर। तो ट्रेडिंग आवर में क्या हो गया है, अभी मैंने 2-3 बार मैंने ये लाइव क्लास लाइव करने की कोशिश किया था, और उसमें क्या था कि मेरा पोजीशन में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा। हमारा क्या है कि माई सेल्फ एंड माय वाइफ वी बोथ डू द साइमल्टेनियसली, हम दोनों साथ साथ एक अकाउंट को हैंडल करते हैं, तो जीरो दाउन में मल्टी लॉगिन अलाउड है। बट शी इज नॉट सो एक्सपर्ट, तो वो फिर बार बार आके मुझसे पूछती, अरे ऐसा हो गया, तो प्रॉब्लम हो रहा था मेरे। तो देन आई डिसाइडेड कि ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर आई विल नॉट टेक एनी कॉल, एंड इवन आई डोंट रिप्लाई आल्सो इफ समबडी आस्क्स एनी क्वेश्चन। इसलिए फिर मैंने शाम को 7 बजे का रखा, फिर 7 बजे मैं फ्री हूं, मैं आधा घंटे के लिए मैं आ जाऊंगा, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। नहीं, एक बार खाली अगर आप मतलब बता देंगे ना, एक बार खाली फर्स्ट टाइम, बिकॉज अरे आप पूछिए ना, आप अपना स्टडी, तभी तो मैंने आपको सबको कोस्ट बनाया हुआ है। आपको जो भी है आप अपना एक्सेल शीट बना के यू कैन शेयर द स्क्रीन हियर ना, विल डिस्कस दैट व्हाट एवर योर स्ट्रेटजीज देयर। नहीं, तो जैसे आप बताए बीपीसीएल में पुट जो है हम सेल कर देंगे, जैसे बीपीसीएल में
नहीं, कवर्ड कॉल के लिए क्या पहले शेयर अकाउंट में रखना होगा 1800 का? हाँ, कवर्ड कॉल करना है तो शेयर आपके अकाउंट में होना है, और अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको पुट बेचना है। पुट बेचना है, उस वाले केस में पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर पैसा अकाउंट में मत है तो मत करना, नहीं तो लंबा लॉस हो जाएगा, अगर आपने बगैर पैसे के काम किया तो। नहीं, तो पहले हम जैसे 450 है बीपीसीएल का, 1800 शेयर हम खरीद लिए, उसके बाद खरीद लिए, ठीक। हाँ, उसके बाद कॉल करेंगे आप, कवर्ड कॉल करेंगे आप। कवर्ड कॉल कैसे करेंगे सर? कवर्ड कॉल यानी कि 450 पे आपने खरीदा, हाँ ठीक तो आप 460 का, 470 का, 500 का जो भी आपका कॉल होगा वो बेचेंगे एज पर योर टारगेट। आपका टारगेट रेंटल इनकम का आपका टारगेट कितना है? अभी आपने 450 में आपने शेयर खरीदा, ठीक है, तो 460 वाला जो कॉल है वो 30 रुपए में बिक रहा है। अच्छा, ठीक। तो 30 डिवाइडेड बाई 450 आपका एक महीने का टारगेट होगा। अगर आप 470 का बेचेंगे तो वो जो 30 रुपया की जगह आपको 20 रुपए मिल रहा होगा, तो 20 रुपया आपका जो है रेंटल का टारगेट हो गया, और आपका जो प्रॉफिट का टारगेट है वो 7-8% अगर शेयर बिक गया तो उस पर होगा। तो उस पर डिपेंड करेगा, आपको कैलकुलेशन करना है कि आपको कितना प्रॉफिट कमाना है, उसके हिसाब से आप जो है अपना कॉल बेचोगे। आपको नहीं समझ में आया? नहीं, समझ में नहीं आया सर, इसीलिए मैं मंडे को सोचा। नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ मैं आपको। आपने 450 का आपने स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, 1800 शेयर खरीद लिया, शेयर खरीद लिया आपने। अभी आप इसकी ऑप्शन चेन देखिए, बीपीसीएल का ऑप्शन चेन देखिए, उसमें आप ये देखिए कि 460 का प्रीमियम कितना है, 470 का प्रीमियम कितना है, 480 का कितना है, 500 का कितना है, हर एक का प्रीमियम देख लीजिए। ठीक है, अभी अपन मान जाते हैं आपने 500 वाला आप कॉल बेच रहे हैं, ठीक है, 500 वाले का कॉल 10 रुपया चल रहा है, ठीक है। अभी बीपीसीएल का शेयर 25 मार्च को 500 से अगर नीचे रहता है तो आपका 10 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया, यानी कि 10 रुपया आपका रेंटल इनकम आ गया, ठीक है। 450 पे 10 रुपया आ गया, तो 10 डिवाइडेड बाय 450 कितना आपका जो है, मतलब आपका रिटर्न कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 450, समवेयर अराउंड 2% का आपका, नहीं 0.2% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर वो शेयर 500 के ऊपर चला जाता है 25 मार्च तक, तो आपको मिलेगा 50 रुपया, तो ये जो 500 का बेचा आपने, 500 माइनस 450, 50 रुपया ये मिलेगा, और 10 रुपए का जो आपको ओरिजिनल प्रीमियम था वो मिलेगा, तो 60 रुपया मिलेगा, यानी 60 डिवाइडेड बाई 450, यानी कि आपका रिटर्न हो गया 12%। तो क्या मिला आपको, या तो 10 रुपया मिलेगा या 60 रुपया मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि 10 या 60 लेना है या 20 और 50 लेना है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वाला आपको प्रोबेबिलिटी में आपको गेम खेलना है, उसके हिसाब से आप करेंगे। अब ये समझ में आया आपको? नहीं आया? नहीं, थोड़ा समझ में आया सर, लेकिन वो लाइव जब तक एक तो नहीं होगा, वो लाइव नहीं हो पाएगा, वो लाइव ही है ना, ये इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। आप अभी अपना ऑप्शन चेन खोलिए, ऑप्शन चेन में इनके प्रीमियम देखिए, और हर एक का जो है आप अपना प्रॉफिट निकालिए कि इस वाले सिनेरियो 1, सिनेरियो जो मैंने एक्सेल शीट सबको शेयर किया हुआ है, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, उनमें वो फिगर डालिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। अपन लोग यार इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करते हैं अपना कंपनी के अंदर, तो ये तो बहुत आसान है भाई, इसमें तो पैसा आपको आ रहा है ना, तो वो थोड़ा एक्सेल शीट पे काम कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा 5 मिनट के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत सिंपल इक्वेशन है, तो बड़ा फार्मूला दे रखा है, उसमें करके देखिए आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, एक्सेल शीट बनाना पड़ेगा, मैं बनाया नहीं। वो एक्सेल शीट तो वो तो आपको आना ही चाहिए ना, तभी तो फिर जब आप पैसा कमाना चाहते हैं थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। और 2 मिनट लगता है, इट्स अ 2 मिनट जॉब, 2 मिनट जॉब, ठीक है। ठीक है, so we'll end now this thing, we will end now and then we'll see now the next I will announce and then we'll again do something, ठीक है। Okay, good night to everybody. Thank you very much. Thank you. Enjoy Saturday, Sunday. I may have one more webinar on maybe on Sunday on the Zerodha platform, how to use the Zerodha. I'm planning to do on Sunday. Then I will announce कि उसमें फिर काफी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि Zerodha कैसे यूज करते हैं, Zerodha के क्या क्या फीचर, कि मोस्टली अपने लोग Zerodha पे हैं, तो Zerodha के I will try to explain maybe on this Sunday. Then I will announce tomorrow कि whether I'm doing that webinar or not. Then Sunday को 4 से 6 के बीच में मैं वो शायद webinar करूंगा. I will explain only the Zerodha features. Okay. Thank you. Good night to everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Good night. ज़्यादा clarity आ गया होगा. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye. Bye.